Hello everyone. Good evening, sir. Hello my dear. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening my dear. Good evening, sir. Good evening to all of you. Okay, so my dear all, ready? Right? अभी ब्रेक तो मिला है ना पूरा 15 मिनट, राइट? है ना? अभी 15 मिनट का ब्रेक मिला है भाई. सर अभी 30 मिनट्स का मिला था. Oh my God! So congratulations first of all. Sir, 25, sir. So why didn't you tell me by the way? आप मुझे बता देते मैं जल्दी शुरू करता. हाँ? Anyway. Okay then. So without taking much more time, let's begin. Ready? So after the discussion, we were talking about the IUPAC system. Remember, my dear? Okay. We were talking about the IUPAC system. That is IUPAC nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemist or Chemistry, whatever. जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो. ठीक है? Anyway, so as I already mentioned out, right? In case of IUPAC system, we need actually we have to follow some steps. First step is that is secondary prefix, then primary prefix, then root word, right? Then primary suffix, then secondary suffix. Am I right? Okay. Okay, my dear. Yes, sir. So, okay then. So let's finish the job by second one, right? Let's start with the second. And here second system is after secondary prefix, now primary prefix. Ready? आज के लेक्चर में काफी नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, मतलब मैं वर्स्ट वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स दूंगा, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन. ओके, कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ नहीं आ रहा हो भाई? जो भी कौन है भाई जो न्यू कमर थे? ओके, अभिनव माय डियर, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है नोमेनक्लेचर में? हाँ सर, सब आ रहा है ना? ओके, क्योंकि ये कोई इसमें आपका कुछ भी छूटा नहीं है अभी. ओके माय डियर. एनीवे, सो प्राइमरी प्रीफिक्स, so when we have to use it, right? So in case of primary prefix we have to use, yes my dear, we have to use, yes my dear, that is cyclo. We have to use some terms just as the cyclo. Okay, first term is cyclo, then bicyclo. Okay my dear, bicyclo term, and that is spiro. I hope so now you are familiar with these terms, right? Cyclo, bicyclo, spiro, am I right? Okay, so we have all discussed about the that is terminology, am I right dear? So मैंने डिस्कस किया था that is bridge head, fused system, spiro system, remember? Okay, so ठीक है, to differentiate carbocyclic compounds. Now you are familiar also with this term, that is carbocyclic compounds, right? From, yes my dear, acyclic one. Okay, from acyclic one. तो जो acyclic compound होते हैं उनको हम differentiate कर सकते हैं with the help of these terms, right? That is by putting forward cyclo, bicyclo and spiro. So it is quite important. ये nomenclature काफी आता है. So let's discuss with some examples. Okay, my dear. So first example, let's talk about it. Right? Meth 8 prop but. So what about the name by the way? अब तो शुरू हो जाओ please. N, that is the normal. Okay? And meth 8 prop but. For 4 carbon we have to put but. Am I right? सर And single bond. Yes, my dear. सर ये एन हर बार लगाना पड़ेगा क्योंकि तो वैसे पता है ना नॉर्मल Yes, sir. चेन है. यस नहीं, सर, वो तो एक नॉर्मली formality है. ब्यूटेन क्यों नहीं लिखा? तो ब्यूटेन लिख सकते हो आप, बट एन चेन है तो आएगा मेंशन हियर, राइट?
सिंपल है वो, आप ब्यूटेन बोल दो इसको, राइट। बट वही है ना भाई कि नोमेनक्लेचर में कुछ टर्म्स है जैसे एन आइसो नियो, राइट, टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी व्हाटएवर, राइट। सो वी हैव टू राइट डाउन ना, फॉर्मेलिटी के लिए वो, कुछ नहीं है वो। बाकी जब एक बार हम सीख जाएंगे, जब तक एग्जामिनर हमें कमांड नहीं देगा भाई व्हाट टाइप ऑफ नेम राइट ही वांट्स, तब तक हम क्यों यूज करेंगे, हम तो सीधे चलेंगे। एनीवे, सो ए साइक्लिक हो गया। व्हाट अबाउट द साइक्लिक फॉर्म ऑफ इट, दिस वन। सो वी हैव टू पुट दैट इज साइक्लो। सिंपल सी बात है, पहले भी ब्यूटेन था, अभी भी ब्यूटेन, बट डिफरेंशिएट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ यू प्रेफिक्सेस जस्ट लाइक द साइक्लो। गॉट इट, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। चलो व्हाट अबाउट इट नाउ, so meth, eighth, prop, bute, pent, hex, so it is n-hexane, right? So how to differentiate with the cycle? We have to put forward, that is we have to write down a cycle here. So name would be Hexane. cyclohexane, सबको पता है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ जल्दी से, है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम है। ओके माय डियर, कहाँ से शुरू करते हैं, बोलो जल्दी। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, रिमेंबर, राइट। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीरीज। मैं इसीलिए रोज बोल रहा हूं मैं कि मैं बोल रहा हूं यहाँ पे सीरीज, हमें बीच में नहीं घुसना कहीं पे भी, सीरीज में चलना है, दैट्स इट। ओके, सो साइक्लो से शुरू कर लो आप, प्रोपेन से, क्योंकि भाई जब साइकिल आप बनाओगे एटलीस्ट 3 कार्बन यूनिट्स तो चाहिए ना, 3 कार्बन एटम चाहिए। अब 2 कार्बन से थोड़ा ना साइकिल बनेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस नाउ, एम राइट। ठीक है डियर। सो ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं था। नाउ अब जो इसमें लॉजिक है वो क्या है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इज स्पाइरो काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके माय डियर, स्पाइरो, दैट इज बाइसाइक्लो एंड नोमेनक्लेचर ऑफ देम। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है माय डियर, इस पे अटेंशन देनी है, ये तो सबको समझ में आ गया है ना, इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है। साइक्लोपेंटेन वगैरह सब आ जाएगा ना, सब कुछ ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ डियर। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ, प्लीज अटेंशन, nomenclature of, yes please, your favorite one now, spirocyclic, okay, compounds। अब इनका nomenclature देखना है हमें, राइट। तो मैं रूल रेगुलेशन के साथ साथ क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल भी लेके चल रहा हूँ काफी सारे, राइट। सो प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स मैं आज लेने वाला हूँ, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। सो स्पाइरो, व्हाट इज मीन्ड बाय दिस टर्म स्पाइरो, एज ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। स्पाइरो मीन्स व्हेन 2 cyclic rings attached with a single carbon atom, that type of carbon atom is known as spirocarbon। Okay, now let's discuss it with a few examples। So पहले आप एग्जांपल ले लो बच्चे, राइट। एग्जांपल नंबर 1, अब मैं नोमेनक्लेचर भी हैंड टू हैंड लेके चलूंगा, so please pay attention now। It would be far better and convenient please if you make some notes। So मेरे साथ साथ आप भी बनाया करो प्लीज, राइट, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी बहुत अच्छे से, क्योंकि बेटा लिखना तो पड़ेगा एक बार। सो व्हाट अबाउट इट, दिस कार्बन इज नोन एज माय डियर स्पाइरो, स्पाइरोकार्बन, इज दैट ओके, स्पाइरोकार्बन। ओके माय डियर, ओके। तो रिलेशनशिप कौन बता रहा है 2 रिंग्स की, सिर्फ एक सिंगल कार्बन। एंड व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन बाय द वे, क्या हाइब्रिडाइजेशन देगा भाई, इतना वक्त लगेगा। हाइब्रिडेशन हम Sir, टॉकिंग अबाउट sp3 sir, same tetrahedral sp3। sp3, श्योर। एंड व्हाट अबाउट द डिग्री ऑफ दिस कार्बन, sp3 बिल्कुल श्योर है। डिग्री quaternary। Sir, yes sir, क्वार्टरनरी, quaternary। एग्जैक्टली, यस। सो a spirocarbon always be quaternary in nature and tetrahedral in nature as well। okay my dear, tetrahedral रहेगा वो, ठीक है, फिर ये तो बात खत्म हो गई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। व्हाट अबाउट द नेम बाय द वे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, अभी तो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि अगर जो स्पाइरो है तो हमें क्या प्रीफिक्स लगाना है, जल्दी बताओ प्लीज। वी हैव टू Spiro। पुट फॉरवर्ड दैट इज, यस प्लीज, ये लगा दिया मैंने स्पाइरो। चलो कहानी खत्म करो जल्दी से। अब मुझे यहाँ पे एक आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट पुट करना पड़ेगा, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ नेम। ओके माय डियर, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, थोड़ा स्पीड अप मेथड में चलो, बहुत हुआ, 1 2 3 4 5, Pent। am I right? Yes, so we have to put that is pent। what about the
Yes, please. An, in, ein. What type of suffix Ain. we have to put here? An. So pentane हो गया. चलो खत्म कहानी. So it is spiropentane, meth 8 pro-butane. Am I right? Okay then. So अब ये जो पेरेंथेसिस है, ये जो ब्रैकेट मैंने लगाया यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे मुझे करना क्या है फिर? Please see carefully. Okay, look at it with an eagle eye. 1 2 1 2. How many carbon atoms are there? 4. भाई स्पाइरो में जो सराउंडिंग में है 2 कार्बन तो राइट में है, 2 कार्बन लेफ्ट में है. ओके माय डियर. सो नेम क्या हो जाएगा बोलो प्लीज? ये हो जाएगा 2.2. ओके माय डियर, 2.2. अब ये डॉट आप इसको बोल सकते हो, फुल स्टॉप बोल सकते हैं, जो विश माय डियर. सो ये 2 2 कहां से है, समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir. It's मीन्स quantity. मीन्स माय डियर. हाँ, बहुत सिंपल है वो. मतलब अगर एक स्पाइरो कार्बन है, सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर, यस माय डियर, एट इट्स राइट साइड, एंड हाउ मेनी कार्बन And the एटम्स left आर side. एट Left इट्स side. left side, and that's it. Quite simple. But one rule is here, you must be kept in mind, right? Spiro means ascending order we have to follow. Okay my dear. Okay, rule क्या है भाई? Rule क्या है? Rule है my dear, that is we have to follow ascending order. What I'm talking about, let Must me be explain ascending. with an example. Yes, please. So naming क्या होगी? That is ascending. Sorry for misprint. तो सर पहले उसको लिखना है जिस साइड पे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. यस इंडीड. जैसे अभी ये 2 और 3 हो जाएगा ना. ओके माय डियर, वेट अ बिट. जैसे भी 2 और 3 कार्बन एटम्स आ जाएंगे, सो वी हैव टू फॉलो असेंडिंग ऑर्डर, राइट? दैट इज 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके राइट. चलो मैं भी एग्जांपल दे देता हूँ. सो इसको Sir, हम हम अभी left फिनिश कर right लेते से हैं, नहीं आगे फिनिश की लेंगे. जरूरत नहीं पड़ेगी. नॉट रियली सो, Okay, sir. right? We have to follow ascending order. Yes my dear, ascending order of, yes please, carbon atoms. Okay fine. Now after first example, let's talk about second one. चलो मैं लेवल बढ़ा देता हूँ जल्दी से, बाकी आप सब कर लेना अपना आराम से बैठ के. ओके माय डियर, कर सकते हो आप. बस हमें करना क्या है, 3 मेंबर से स्टार्ट करना है. फिर इसके साथ में क्या करना है, 3 + 4, 3 + 5, 3 + 6, 3 + 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका आप बुकलेट लिख सकते हो नोमेनक्लेचर पे, राइट? मतलब जो कंपाउंड कभी आपने, आई मीन किसी भी लेवल पे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये सब नेम्स तो एक साथ नहीं आएंगे, ये तो एकदम श्योर है. ओके माय डियर, राइट? बट इसमें से कुछ भी कहीं पे भी आ जाए तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज फर्स्ट ऑफ ऑल. एनीवे, सो लेट्स बिगिन. अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 मेंबर के साथ कौन सा रिंग ले रहा हूँ, जल्दी से बताओ प्लीज. 4. रेडी? चलो नाउ, चलो बताओ जल्दी से. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू Pyro पुट 2, स्पाइरो. चलो comma फॉर्मेलिटी. 3. Pyro. Hexane. not comma, full Dot. stop. Pyro Okay, yes, dot. 2.3. Spyro, Hexane. 3. 2.3. 2.3. Hexane. yes please. फाइनल हो गया. अब आपको सब समझ में आ गया. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, राइट? तो ये नेम होता है इसका, इतना क्वाइट सिंपल होता है सब, राइट? बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं जो आई मीन नोमेनक्लेचर में है. एनीवे, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4 5. ये लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम, उसके बाद लेट्स मूव ऑन ब्रिज हेड. ओके माय डियर, नाउ व्हाट अबाउट द नेम? चलो शुरू करो. स्पाइरो. लेट्स बिगिन. स्टार्ट. 3.4. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3.4. 3.4. 4. yes please. what about the 8. Octane. 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 ऑक्टेन. फाइनल करते हैं. चलो फिर ये तो आ गया सब समझ, आगे बढ़ जाते हैं फिर. नाउ आफ्टर स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट up next, that is nomenclature of, yes my dear, nomenclature of bicyclo compounds. Bicyclo, okay, bicyclo compounds. So let's start with an example of, remember the term that is norbornene. remember my dear? इसीलिए तो बोलता हूँ कि एक बार आप अगर रिवाइज कर लोगे बहुत ही स्पीड हो जाएगी, फिर सोचना नहीं पड़ेगा हमें. ओके बोलो माय डियर, व्हाट अबाउट इट? ओके, बाईसाइकिल मींस
दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट माय डियर। पहले मैं इसके बारे में बोलूंगा। अब आप साइकिल ले सकते हो, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ओके माय डियर, देख सकते हो आप ये रहो। ओके, दूसरा मैं चलो इसको इससे हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। और मैं इस कार्बन को यहाँ से ग्रीन बना देता हूँ, राइट। ओके, सो यहाँ पे जो डॉट वाला कार्बन है दैट इज कॉमन कार्बन। ओके माय डियर, यस और नो प्लीज। ये कॉमन कार्बन है, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ कार्बन एटम इज आल्सो नोन एज ब्रिज हेड। चलो मैंने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज 7। गेटिंग? सो पहला साइकिल कौन सा है? 1 2 3 4 एंड 7, फर्स्ट साइकिल। यस और नो? सेकेंड साइकिल 1, यहां से शुरू कर लो चाहे आप, या यहीं से शुरू कर लो, इट डजंट मैटर। 1 6 5 4 एंड 7। यस और नो माय डियर? तो ये कौन सा साइकिल है? दैट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। डबल साइड। We can convert it, yes my dear, we can convert it in another, that is real form of it, known as, my dear, that is norbornene, remember? इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं एक बार अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मैं उसको यूज करूंगा बार बार, राइट। सो प्लीज आप पे अटेंशन। तो काउंटिंग बस, यस प्लीज, 1 2 3 4 5 6 एंड हियर इज 7। यही काउंटिंग होगी ऑलवेज। एंड द नेम ऑफ दिस इज नोन एज नॉर, रिमेंबर, नॉरबॉर्नेन। ओके, नॉरबॉर्नेन एंटिटी। ओके माय डियर। सर इनकी डायमेंशन कैसे होती है? डायमेंशन एक्चुअली ये मॉडल की हेल्प से समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है आप बस इतना समझो भी, इंस्टेंटली आप इतना समझो बच्चे, ये जो कार्बन है दिस वन इज नोन एज, यस माय डियर, ब्रिज हेड। रिमेंबर माय डियर, क्या नेम होता है इसका? ब्रिज हेड। ब्रिज हेड कार्बन, राइट। ये इस टाइप से होता है, जैसे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। ओके, ये प्लेन है और ये जो एक यहाँ पे कार्बन रहेगा, दिस वन इज नोन एज द ब्रिज हेड। ओके, ऊपर की तरफ ये वाला। ओके, दिस वन इज ब्रिज हेड कार्बन। ओके, राइट। मैंने इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बना दिया यूं, और जो चीज यहाँ पे है ये दैट इज नोन एज ब्रिज हेड। तो मैं पूरा मॉडल बना के दिखा सकता हूँ आपको। ओके माय डियर, विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड स्टिक मॉडल। ओके, राइट। तो आगे जो जो लेवल बढ़ता जाएगा आपका केमिस्ट्री का, तो क्या होगा उसमें, यही तो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसमें, ठीक है। मैंने बोला ऑलरेडी कि 70% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जाके साइक्लिक हो जाएगी, ठीक है। वो इस साइक्लिक की बात ही नहीं करेगा, राइट। मतलब ज्यादातर उसमें साइक्लिक कंपाउंड्स आएंगे। ओके माय डियर, सो हाउ मेनी ब्रिज हेड कार्बन आर देयर? ओनली वन। चलो नेम बताओ फिर। इसमें मुझे रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना है। सो व्हाट अबाउट द रूल ऑफ फोइट? यस प्लीज, स्पाइरो असेंडिंग। सो व्हाट अबाउट बाइसाइक्लो डिसेंडिंग? बात फाइनल। चलो रूल, तो यहाँ सिर्फ रूल रेगुलेशन नहीं चल रहे हैं, नोमेनक्लेचर भी चल रहा है। ओके, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब पहले मैं पूरा फॉर्मेलिटी पूरी करूँ उसके बाद में एग्जांपल, नहीं। एग्जांपल्स हम अभी हैंड टू हैंड ले रहे हैं, इसके बाद में मैं कंबाइन कर दूंगा फिर, रेस्ट एश्योर्ड माय डियर। ओके, सो वी हैव टू फॉलो, यस माय डियर, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, चलो बताओ फिर, व्हाट अबाउट द नेम? शुरू हो जाओ। कितने साइकिल है? बाई, तो प्लीज नेम। सो ये क्या है इसका? What about it? That is the common name, and please you must be kept in mind. Okay, my dear, very important. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और किया, देखते हो आप क्या नेम बताते हो उसका। चलो कॉमन नेम पूछ रहा हूँ अपने, बताओगे? ठीक है फिर, राइट माय डियर, आप इसका मुझे कॉमन नेम बता दो। What about the common name of it? Yes बच्चे बोलो, break the silence. Yes please. What about the common name? चलो, नॉरबॉर्निन। नॉरबॉर्नेन तो ये था। अब कीटोन के लिए क्या लगाते हो? रिमेंबर, ओन। रिमेंबर, है ना? यस सर। हाँ या ना? ओन लगाते हो ना, ONE, ओन, राइट माय डियर। सो इन केस ऑफ IUPAC nomenclature you must specify the position at which position functional group exactly attached. Am I right? तो किस पोजीशन पे अटैच है? अभी मैंने बताई ना काउंटिंग, कि आप काउंटिंग कहीं से शुरू कर लो, बट ब्रिज हेड को लास्ट नंबरिंग देनी है, लास्ट। तो क्या होगा इसका नेम? नॉरबॉर्नेन था पहले, ओन बना, तो नॉरबॉर्नेन हो गया, नॉरबॉर्ने
known, right? But what about the position? ये मास्टर डिग्री की प्रॉब्लम है, मास्टर डिग्री, राइट? हाँ, क्या पोजीशन लोगे बेटा, बोलो। ये 7 पोजीशन आती है ना ब्रिज हेड की, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर बाय द वे? 7, यस, नॉर, बोर, राइट? 7 नॉर, बोर्ने, नोन, ये नेम हो गया, ठीक है? रेडी? हाँ, तो इसकी जो काउंटिंग है फिक्स है। वी विल टॉक अबाउट इन वेरी डिटेल हाउ टू काउंट, राइट? आपको पता भी होगा ना डियर, अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो की होगी अभी तक, तो उसमें क्या है, मेंशन है उसमें रूल। मुझे लगता है मेरी प्रीवियस नॉलेज से 330 पेज पे है, राइट? वॉल्यूम सेकंड जो एनसीईआरटी 11th क्लास का। तो आज क्या रहेगा आपका होमवर्क, उसको प्लीज पढ़ो आप एक बार थोरोली। उसमें नंबरिंग बताई हुई है, हालांकि मैं भी डिस्कस करूंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल बी फेमिलियर, ऑलराइट माय डियर, ठीक है? तो उसमें नंबरिंग बताई हुई है कि वी हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, दैट इज मतलब सबसे लेंथी चेन हमें चाहिए, दैट इज आल्सो नोन एज पेरेंट और प्रिंसिपल चेन, राइट? खैर, एनीवे, सो मैं डिस्कस करूंगा उस बारे में। तो 7 नॉर बोर्न एंड नोन, इज दैट ओके? क्लियर होगी बात? तो जब भी नॉर बोर्न एंड नोन, नॉर बोर्न एंड आएगा तो उस पर कुछ पोजीशन लगाएगा। अब यहाँ पे क्या होने वाला है जल्दी बताओ मुझे। ये जो माय डियर पोजीशंस हैं, 2 and 6 पोजीशंस आर एक्विवेलेंट, मतलब वो सेम है, हाँ या ना, या तो यस या तो नो, बोलो। यस सर। यस इंडियन। कैसे सर? अरे यार, आप एक यहाँ पे चेक करो डियर, आप इसका चेक करो पोजीशन क्या है। जो 7 है, जो 7 पोजीशन है ब्रिज हेड सिस्टम, सो 2 और 6 का Yes, जो sir. इन्वायरमेंट है, राइट, सेम है ना वो, राइट? उनका नेबरिंग पोजीशन चेक कर लो आप, 1 2 3 कर लो, व्हाटएवर, कुछ भी, वो एग्जैक्टली सेम है। 3 and 5 आर, यस माय डियर, एक्विवेलेंट और सेम, व्हाटएवर, ओके, जो भी आपका मन करे आप यूज करो। 1 and 4 पोजीशन दोनों एक जैसी हैं, तो आप 1 को 4 लिखो, 4 को 1 लिखो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 को 3, 3 को 4 लिखूं, कुछ डिफरेंशिएट है इसमें? कुछ डिफरेंस है नहीं है एग्जैक्ट सेंस में, ओके, ठीक है? चलो स्पीड अप मेथड में चलते हैं। सो डिसेंडिंग ऑर्डर आई एम टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ बाइसाइक्लो। सो व्हाट अबाउट द नेम प्लीज? चलो बोलो। सबसे पहले पुट करना है क्या, बाइसाइक्लो, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाए। बाइसाइक्लो, स्टार्ट किया, स्क्वायर ब्रैकेट, यस माय डियर। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? टोटल 7 है, तो क्या आएगा फिर, हेप्ट। 7 के लिए क्या यूज करते हो, हेप्ट। व्हाट अबाउट द बॉन्ड, इन, एन, आइन, व्हाट, एन, हेप्ट एन, बन गया नेम, बाइसाइक्लो हेप्टेन हो गया। बट वी हैव टू फॉलो डिसेंडिंग ऑर्डर। बोलो, अभी तो बोला ना डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बताओ फिर क्या लिखूंगा पहले में। हाउ मेनी कार्बन एटम्स, यस प्लीज, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, काउंट करो। 2 यस यस बेटा, तो 2 डॉट 2 वंस dot अगेन 2 डॉट 1, यस और नो, या तो यस या तो नो। लॉक किया जाए। सर ये आपने 1 क्यों दिया लास्ट में? बेटा 1 है ना, ये ब्रिज हेड कार्बन 1 है, उसको भी, अच्छा ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर लेना। लेना पड़ेगा ना, ठीक है? स्पाइरो में तो नहीं लिया था हमने, राइट? बट ब्रिज हेड में ऑलवेज, ब्रिज हेड बाइसाइक्लो में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट सेकंड एग्जांपल, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, अभी दूर कर देते हैं। मैंने इसीलिए तो बोला है, जब तक आप यस नहीं बोलोगे मैं एग्जांपल लेता रहूंगा, ठीक है? तो आपके यस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, प्लीज सोच समझ के बोलना है। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? रेडी? चलो बताओ फिर, नेम बताओ। हो गया ना बाइसाइक्लो, ठीक है? व्हाट अबाउट द नेम माय डियर? अरे इतना तो स्टार्ट कर लो कि भाई फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया पहले। ये हो गया बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो 4.1 शाबाश, वेरी गुड। 4.1, यस, सेप्टेन हेप्टेन। हेप्टेन हाँ, कोई बात नहीं यार, अभी शुरू किया है हमने। आप सेप्टेन बोलोगे, मैं एग्री कर लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है? बट सेप्ट को हम हेप्ट बोलते हैं, ओके माय डियर, ठीक है? आईपीसी वही है ना कि थोड़ा सा फॉलो करने पड़ेंगे रूल रेगुलेशन जो उन्होंने बोले। सो हाउ मेनी ब्रिज हेड कार्बन आर देयर बाय द वे? है कोई?
बोलो बेटा। नो One. सर जब 1 है, ये है 1। ये ब्रिज सर, पे one- का है यार ब्रिज पे का है वो। ये ब्रिज पे सर नहीं आप है। नंबरिंग कैसे कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया जो ब्रैकेट्स के अंदर है। ये देखो ना, ये जो ये है ना 1 2 3 4, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3 4, राइट? एंड दिस वन इज, यस माय डियर, फ्यूज्ड सिस्टम। यही तो सेपरेट कर रहा है इसको, यही तो सेपरेट कर रहा है कि भाई ये बाईसाइकिल है। कौन बता रहा है कि इट इज बाईसाइक्लिक इन रियल सेंस? यही तो बोल रहा है जो बीच सर में ब्रिज मैंने हेड में 0 आएगा फिर। ऑब्वियसली, ये हुई ना बात, वेरी गुड। ब्रिज हेड में कुछ भी नहीं है बेटा, 0 आएगा, ठीक है? तो ब्रिज हेड में मतलब ब्रिज हेड में मीन्स आप यहाँ पे देखो ना, ब्रिज हेड पे कार्बन है या नहीं? ये देखो आप 7 नंबर ब्रिज हेड पे था, राइट? यहाँ ऐसा कुछ है नहीं है, वो तो स्ट्रेट है। दैट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज सिस्टम। ओके, हाँ बोलो। और यहाँ राइट साइड में कितने कार्बन थे इसके? हाउ मेनी कार्बन एटम्स in right direction or right side? Only one. So we have to follow descending order, remember? तो स्पाइरो असेंडिंग, दैट्स इट, हो गया। तो जाहिर सी बात है जो बचा उसमें क्या करना है? डिसेंडिंग करना है। स्पाइरो असेंडिंग, रिमेंबर प्लीज। ओके, सो हियर इज नो ब्रिज हेड कार्बन। सो व्हाट अबाउट द नेम? 4.1.0 एंड अल्टीमेटली हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर कलेक्टिवली? कितने हैं बोलो? बोलो भाई, ये भी तो कार्बन है बेटा, ये भी तो है। कार्बन में से नहीं हो ना, ठीक है? क्या आ जाएगा फिर? हेप्टेन। यस और नो? यस प्लीज, वो भी हेप्टेन है, ये भी हेप्टेन है। व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज, यस माय डियर, वी कैन डिफरेंशिएट in between them, yes please, with the help of bridge head carbon. Okay, there is no bridge head carbon in case of example number 2. Yes or no? Right? yes sir. ठीक है, चलो फिर मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ। लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो ट्राई करो, हालांकि मिस्टेक हो भी गई तो मैं सुधार दूंगा, नो इशू एट ऑल। ओके, आप बस बोलना शुरू करो, इस बारे में टेंशन मत लो, गलत है या सही है, जो समझ में आता है बोलो आप प्लीज, मैं करेक्ट कर दूंगा। चलो, आई होप सो आप इसका एग्जैक्ट नेम मुझे बताने वाले, ठीक है? पूरी फीलिंग आ रही है फिलहाल मुझे कि हाँ बताओगे आप, ठीक है? चलो मेरे प्यारे बच्चों बोलो। तो मैं इसको या तो ऐसे ही नेम दे सकता हूँ। बाईसाइक्लो शाबाश, चलो पहले बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो 2.2.2 octane 2.2.2 ऑक्टेन। octane। ये हुई ना बात, वेरी गुड। बस तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसीलिए तो बोलता हूँ ये इस ब्रैकेट का कोई स्पेसिफिक नेम है, मतलब कि मतलब स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट पे है जो यार, और क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट है, और क्या है? ब्रैकेट तो जैसे हम यूजुअल लगाते हैं वही, ओके राइट माय डियर? वी कैन कॉल इट स्क्वायर ब्रैकेट, और इन सम टर्म्स दैट इज पेरेंथेसिस, ऐसा कुछ बोलते हैं ना? सर क्या? पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस ऐसे बोलते हैं। So वो तो स्क्वायर ब्रैकेट्स को बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो यार ये स्क्वायर ब्रैकेट ही तो है। स्क्वायर नहीं, सॉरी सर, सर्कुलर ब्रैकेट्स जो कॉमन Circle. ब्रैकेट्स होते हैं उनको Okay, उनको हाँ। पैरेंथेसिस बोलते ओके, हाँ व्हाटएवर, मतलब होता ब्रैकेट ही है ना? मैंने कभी बचपन में पढ़ा था यार, याद है मुझे, तो मैंने बोल दिया। ओके, हाँ तो मैंने इसीलिए इसको बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट है। एनीवे, सो गॉट इट नाउ। चलो इसको कन्वर्ट करो जल्दी से, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना? क्योंकि मैं इसको किस फॉर्म में बना सकता हूँ? नॉर्बोर्नेन फॉर्म में बना सकता हूँ, राइट माय डियर? सो प्लीज काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। जो भी ब्रिज हेड सिस्टम होगा, वी हैव टू काउंट ब्रिज हेड कार्बन एटम, यस माय डियर, एट लास्ट। ओके, लास्ट पोजीशन पे उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट। चलो फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। सबसे पहले लिख के बैठ गए, हो गया पूरा। हाउ मेनी कार्बन एटम्स एट ब्रिज हेड पोजीशन? 2। यस और नो माय डियर? सो मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, ये देख सकते हो आप, राइट? व्हाट अबाउट द काउंटिंग? मैंने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किया? जहां से मुझे जंक्शन मिला। तो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट, राइट माय डियर, अगर आप काउंटिंग यहीं से शुरू करो। ओके, सो 1 देन 2 3 4 5 6। यस, 4 के बाद क्या है? 4 किससे अटैच है? 8 से अटैच है, रिमेंबर? देख सकते हो ना माय डियर आप यहाँ पे, ठीक है? यहाँ 4 के बाद 7 नहीं आएगा, 4 से 8 अटैच है। इफ यू टॉक अबाउट द काउंटिंग, ओके, मतलब अगर एग्जैक्ट काउंटिंग की बात करो,
हालांकि आप कहीं से भी काउंट करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना? ओके, बट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सो 8 देन माय डियर 7, ठीक है, क्योंकि 1 और 7 अटैच है ना, आप चेक कर लो ना माय डियर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? ओके, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ से, ऑलराइट। सो यहाँ पे राइट साइड में कितने कार्बन थे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स एट राइट साइड? 1 and 2. What about left side? 1 and 2. What about bridgehead? 1 and 2. Okay, so हो गया नेम bicyclo 2.2.2. Yes my dear, okay, I hope so now it is clear. Yes or no? आगे बढ़ जाए तो okay, can we move Yes, it? sir. Okay my dear, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ सुहानी, कुछ पूछना है? ठीक है अब तक? यस ओके, ठीक है। ओके बच्चे, नाउ चलो एक और एडवांस प्रॉब्लम दे देता हूँ, ठीक है? ये प्रॉब्लम आई मीन हाई लेवल की, बट इट डजंट मैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट बाइसाइक्लिक सिस्टम, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट, तो चलो लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। ओके डियर, व्हाट अबाउट इट? अब मुझे बच्चे नेम बताने वाले, ओके, और फिर मैं इसका कॉमन नेम देने वाला हूँ, ओके? सर बाइसाइक्लो 4.4.0 I'm waiting. और सर 10 को क्या कहते थे? डेक डेकेन। डेकेन, डेकेन। ये हुई ना बात। देखो फिर अब मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना ले लूं, आप तुरंत नेम बताओगे विद इन अ फ्यू सेकंड, ओके राइट माय डियर? सो क्या हो जाएगा? दैट इज बाईसाइक्लो, ओके कम ऑन, बाईसाइक्लो, यस माय डियर, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप चेक कर लो यहाँ से 1 2 3 4, सो 4 डॉट, कार्बन कॉमन है ना दोनों साइड में, इसलिए मैं तुरंत लिख रहा हूँ, अदरवाइज मुझे सोचना पड़ता कि असेंडिंग डिसेंडिंग कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, बट कार्बन का नंबर सेम है, लेफ्ट साइड भी उतना ही है, राइट साइड भी उतनी है, तो इट डजंट मैटर आप क्या लिखते हो यहाँ पे, 4 ही लिखोगे आप, है ना? लेफ्ट से आओ चाहे राइट से आओ। Once again, bridgehead. dot 0. There is no bridgehead at all. So these carbon atoms are known as, yes my dear, please break the silence. क्या बोलोगे Fused इनको? carbon atom. Fuse, very good. You are improving day by day by day. Very good response. Okay my dear, I appreciate it. So it is known as, yes please, fused. Fused carbon atoms. Okay. और जो ऊपर मैंने बोला है, these 7 8 number bridgehead carbon atoms. Got it? और इसका माय डियर कॉमन नेम होता है, दैट इज नोन एज डिकेन। क्या नेम होता है? हाँ यहाँ तो नाम लिया ही नहीं, क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो 4.4.0, यस माय डियर, डिकेन। तो इसका कॉमन नेम होता है डिकेन, है ना? और आईयूपीएसी में नेम क्या होता है? बाईसाइक्लो दिस 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 दिस, ठीक है? देखो कितना लैंग्वेज है ना? तो आईयूपीएसी नेम देख के डर तो बहुत लगता है, बट अगर हम रूल रेगुलेशन एक बार सिर्फ डिस्कस कर लें नहीं तो सर, भी काफी बनाते हैं तो convenient। इजी लगता है। और क्या है, कुछ भी नहीं है यार, बट लेंथी होता है ना बहुत, मतलब कभी कभी तो इतनी बड़ी लेन होती है, चेन पूरी, ठीक है? तो ठीक है, चेयर फॉर्म का तो पता नहीं होगा किसी को, अदरवाइज मैं इसको डिकेन, मतलब डिकेन, इसको डिकेलिन बोलते हैं, कॉमन नेम माय डियर इसका डिकेलिन है, ठीक है? डिकेन तो आईपीसी हो गया ना, तो राइट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यस इसका नेम होगा माय डियर, दैट इज डिकेलिन, डिकेलिन, ओके? और डिकेलिन दो तरह का रहता है, दैट इज सिस डिकेलिन एंड ट्रांस डिकेलिन। अब ये सिस ट्रांस है तो सबको, आई मीन यू आर फेमिलियर, व्हाट अबाउट सिस एंड व्हाट अबाउट ट्रांस, सबको पता है या नहीं पता है? बस यस और नो में बताना है। नो सर। नो, नाउ इट्स ओके, लेट मी ड्रॉ। इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स किया करो प्लीज, टाइम नहीं है हमारे पास इतना। आप नो बोलोगे मैं तुरंत एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है? ये देखो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सिस एंड ट्रांस। सिस ट्रांस एल्कीन का सबको पता है? किसी को पता है व्हाट इज मीन बाय द टर्म सिस? मतलब सिस एल्कीन को कैसे करोगे आप, ट्रांस को क्या करोगे? सिस एल्कीन ट्रांस एल्कीन नहीं पता बच्चे? सिस मीन्स दोनों का प्लेन सेम होगा, इट इज क्वाइट सिंपल, राइट? एंड सिस इट इज ऑल्सो नोन एज, यस माय डियर, दैट इज विसिनल। हाँ जी, यस और नो? ये दोनों प्रोटॉन विसिनल है या नहीं है?
विसिनल है बिकॉज वो 1-2 पोजीशन पे है, नेबर है। यस माय डियर, है ना? इसके बारे में क्या ख्याल है फिर? व्हाट अबाउट ट्रांस? ये अबव हो गया और ये बिलो। ओके बच्चे, वन अबव प्रोटोन है और अनदर प्रोटोन इज बिलो, सो दिस वन इज नोन एज ट्रांस। बस इतना सा फर्क है, मतलब प्लेन। प्लेन समझते हो ना? अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये प्लेन है, राइट? My poem is plane, okay, and this one is above the plane and this one is below the plane. Simple सी बात है, right? So we can understand 3D model with the help of ball and stick model, right? तो हम देखेंगे मॉडल, रेस्ट एश्योर्ड। ऑलराइट, तो समझ में आ गया सिस ट्रांस क्या होता है? जब दोनों का प्लेन सेम होता है तो हम उसको सिस बोलते हैं। और माय डियर, एक का प्लेन अबव, दूसरे का बिलो। अब किसका अबव किसका बिलो, इट डजंट मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। बस ये होना चाहिए कि एक अबव तो दूसरा बिलो, दिस इज दैट इज नोन एज ट्रांस। फाइनल है। क्या कोई मुझे बताएगा कि इनमें एंगल कितना है? चलो, जब क्वेश्चन आएगा तो वो पूरा ही फिनिश कर देते। बोलो बच्चे, कितना एंगल है इनमें दोनों प्रोटॉन्स में? हम टॉकिंग अबाउट एंगल। तो देखने में तो 180 डिग्री लग रहा है, अगर रिपल्शन नहीं हुआ कुछ तो। इनमें यार क्या रिपल्शन देगा, वो 180 फार अपार्ट है, बियॉन्ड एनी डाउट। ओके, समझ रहे हो ना? अब ये हो गया प्लेन, तो आप देखो इसमें पूरे में 180 एंगल है या नहीं? यहाँ से लेके यहाँ तक 180 है पूरा, तो 180 है बियॉन्ड एनी डाउट। ठीक है, ट्रांस में 180 एंगल है। ओके देन, चलो आगे बढ़ो जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, सो आफ्टर दीज एग्जांपल्स, नाउ अप नेक्स्ट कौन सा आएगा भैया? 4th नंबर है ना, है ना? 4th नंबर पे क्या आएगा? सेकेंडरी, राइट? चलो वर्ड रूट पे आ जाओ, 3rd नंबर पहले। मैं वर्ड रूट को भी कंप्लीट कर देता हूँ, तो जिसको नहीं आया होगा वो कर लेगा, हालांकि सबको पता सर है, एक बट बार हमको वो वाली चीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ, व्हाई नॉट? ओके, बोलो माय डियर, कौन सा एग्जांपल है? सर ये सिस एंड बोलो। ट्रांस वाला, सीस एंड सिस एंड ट्रांस। ट्रांस, हाँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिस एंड ट्रांस, राइट, विद रेस्पेक्ट टू प्रोटोन। तो मैंने हमेशा बोला है, बार बार मैं बोलता भी रहता हूँ मैं ये, अगर आप कुछ भी पोजीशन बोल रहे हो, कुछ भी अल्फा बीटा गामा व्हाटएवर, तो आपको रेस्पेक्ट पता होना चाहिए, इन विच रेस्पेक्ट यू आर टॉकिंग। यस सो वी आर टॉकिंग अबाउट विद रेस्पेक्ट टू दीज टू प्रोटोन, एम राइट? किस रेस्पेक्ट में क्लेम कर रहा हूँ भाई मैं कि सिस है? ये माय डियर, ये जो है इसके बेस पे मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये जो दोनों प्रोटोन है यहाँ पे, वो 180 फार अपार्ट है ना, बट दोनों का प्लेन सेम है। क्या है इनका? सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, राइट? दोनों का प्लेन क्या है? अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट प्लेन ऑफ दीज टू प्रोटॉन्स? जल्दी से बताओ। वन अबव, वन बिलो, डिफरेंट प्लेन। ओके, वन प्रोटोन अबव, अनदर प्रोटोन बिलो। ठीक है, यस सर। है ना? तो ट्रांस में 180 एंगल है, लेकिन सिस में नहीं है। क्यों भाई? सिस में तो दोनों का सेम रहेगा ना। अब मैं इसी में डिटेल लेता रह जाऊंगा, अदरवाइज ये है ना, ये दोनों ऐसे है ना, दोनों अबव द प्लेन, अबव द प्लेन है यस दोनों। ओके, अबव अबव, तो इनमें 180 नहीं है, ट्रांस में 180 है, वन अबव अनदर बिलो, ऐसे रहेगा ट्रांस यूं। यस ओके, समझ आ गया? यस बस फिर सर। तो ये 3D की बात है। सर डेकालिन क्यों लिखा है? नहीं, डेकालिन इसका कॉमन नेम है ना, यस कॉमन नेम है बच्चे, इसका कॉमन नेम है, कॉमन। भाई कॉमन नेम भी तो हम ले रहे हैं ना, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं कॉमन नेम पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ोगे, इवन कैसे भी बुक पढ़ोगे ऑर्गेनिक की, उसमें 50% से ज्यादा कॉमन नेम ही होते हैं, कहीं कहीं तो 70%। ठीक है, और एग्जाम में भी कॉमन नेम से काफी प्रॉब्लम्स आती है। चलो फिर, सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, 3rd वन। चलो बच्चे, अब जल्दी से स्पीड मैनेज में आ जाओ। 3rd सिस्टम इज दैट इज नोन एज वर्ड रूट। आई होप सो ये सबका क्लियर है। क्यों भाई, लिखूं या छोड़ दूं इसको? बस जल्दी बोलो प्लीज। छोड़ सर दो। वो लास्ट वाले 2 लिख दो बस, जो C1, 11 और C2, 12 है। C3, ओके ठीक है, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, राइट? सो शुरू कर दो, यहां से क्या आएगा? मेट ए प्रोब्यूट पेंट हैग्स हैप्ट ऑप्ट नॉन डेक, इसको बोलेंगे बेटा अनडेक। क्या बोलेंगे? अनडेक।
और इसको बोलेंगे माय डियर इट इज सेड टू बी दैट इज डोडेक। इतनी सिंपल सी बात थी। चलो फिर 12 शायद आएगा भी नहीं तुम्हारे में, नहीं तो मैं 20 तक लिख सकता हूँ, ठीक है, बट इतना काफी रहेगा। ओके, इज दैट ओके? ठीक है, चलो ये वर्ड रूट था। अब इसमें जो स्पेशल है, आई मीन जो कार्बन यूनिट है वो क्या है? 5 नंबर स्पेशल है। क्यों है वो स्पेशल? क्योंकि उसमें मैं सब कुछ यूज कर सकता हूँ। क्या किया मैं उसमें? एन भी यूज कर सकता हूँ, एन पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन, राइट, फिर आइसोएमाइल, फिर नियोपेंटेन। रिमेंबर कितनी टर्म्स यूज कर सकता हूँ? यस सर। सबको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ से आइसो यूज कर सकता हूँ, एमाइल यूज कर सकता हूँ, नियो यूज कर सकता हूँ, है ना। नियो भी तो इसी से बनेगा ना, पेंटेन से। ओके, ठीक है, ओके देन। सो ठीक है, मेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्सो ऑफ नॉन, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। ठीक है, ये वर्ड रूट था तुम्हारा ना। फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं बच्चे, फोर्थ वन आफ्टर थर्ड। लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ। मुझे फिफ्थ तक अभी कंप्लीट करना है, ठीक है, तुरंत। और मैं आईयूपीएससी नेम बहुत सारे लेने वाला हूँ, आईयूपीएससी प्लस कॉमन, काफी कुछ नेम्स में लेने वाला हूँ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी। यस माय डियर, किसका नंबर है अब? प्राइमरी सफिक्स। रिमेंबर, प्राइमरी सफिक्स का नंबर है, राइट। अब प्राइमरी सफिक्स बताता क्या है? इट इंडिकेट्स, yes my dear, degree of, it indicates degree of saturation, degree of saturation and unsaturation. Rest assured मैं आपको बताऊंगा कि how to calculate degree of saturation and unsaturation. Okay my dear, so how we can differentiate in between saturated compounds and unsaturated based on the single bond, double bond, triple bond. मतलब एल्केन है तो सैचुरेटेड है, दैट इज कंसिस्टिंग सिंगल बॉन्ड। एन मींस सैचुरेटेड, इन एंड आइन मींस अनसैचुरेटेड। क्वाइट सिंपल। ऑलराइट माय डियर, सो ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, नेचर ऑफ कार्बन एटम। यहां से मैं टेबल बना देता हूं जल्दी से। नेचर ऑफ कार्बन एटम, ऑलराइट, ये नेचर ऑफ कार्बन एटम है। एंड हियर इज, दैट इज नेचर ऑफ रेडिकल, नेचर ऑफ रेडिकल। अब तो आप रेडिकल से भी फेमिलियर हो, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रेडिकल। फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास क्या है? सर्टेन नंबर फंक्शनल ग्रुप है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, वही 15-20 के आसपास है बस फंक्शनल ग्रुप। बट कंपाउंड्स कितने हैं? मिलियंस, बिलियन। क्यों भाई? फिर तो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा बाद में? सबसे ज्यादा हेडेक देने वाली चीज क्या है इसमें? रेडिकल। क्योंकि रेडिकल चेंज होगा तो बस नेम चेंज होगा। तो एक फंक्शनल ग्रुप से आप थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हो, ठीक है। अभी पावर देखना आप मैं कितने बनाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मैं एस्टर के 100 से ज्यादा कंपाउंड बना दूंगा, ठीक है, विद इन अ मिनट। सिर्फ 1 मिनट में सीरीज पूरी क्लियर हो जाएगी, रेस्ट इश्यू, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन। नाउ नेचर ऑफ, यस माय डियर, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ रेडिकल। ओके, सो भैया पावर देखना जरा रेडिकल की, कितनी बड़ी पावर है इसकी। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब यही चलाता है रेडिकल, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप तो बहुत कम है, हालांकि मैं सारे मेंशन कर दूंगा अभी। सो नेचर ऑफ कार्बन एटम, फर्स्ट ऑफ ऑल you know very well what I'm talking about. For carbon we have to use that is N, right? क्यों भाई? चलो शुरू कर दो जल्दी से, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लीजिए। वन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो माय डियर यूज होगा दैट इज इन। चलो फॉर्मेलिटी और पूरी कर लीजिए। इन केस ऑफ 2 we have to use diene, remember? 3 we have to use, break the silence, बोलो जल्दी से, ट्राइइन। यस माय डियर। चलो लास्ट वन, और नहीं मैं लिखूंगा, बहुत हुआ। फोर्थ में यस प्लीज, टेट्राइन। सो यू गॉट इट, फाइनल हो गया। व्हाट अबाउट वन सी ट्रिपल बॉन्ड सी? ओके माय डियर, बोलो यस प्लीज, आइन। Ain. ओके, yes. And what about the 2C triple bond C? Yes, please. Diene. Yes or no? Yes, sir. इतना सिंपल है। तो इसमें में कुछ नहीं करना, ना कोई मेमोराइजेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, वो भी सिक्वेंशियली। जैसे मैंने सीक्वेंस पकड़ी हुई है,
कि 1 से मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 और 5 तक मुझे जाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट बचेगा 5, इस पे मैं अच्छा खासा स्ट्रेस देने वाला हूँ, और सारे जितने भी नोमेनक्लेचर में आएगा, आई मीन कॉमन नेम प्लस IUPAC नेम, मैं दोनों यूज करूंगा, राइट, हैंड टू हैंड। तो ऐसे नहीं भाई Yes, पहले sir. हमने कॉमन नेम पढ़े फिर IUPAC पढ़े, नहीं ना, वी हैव टू कंपेयर। मैंने बोला है जब भी कंफ्यूजन होगा वी हैव टू कंपेयर, दैट्स इट। ठीक है, चलो फिर तो आज मैं लिखूंगा, आप बोलोगे, देखते हैं, आप टेस्ट है आज आपका। ठीक है, पूरे 30 मिनट बोलूंगा मैं कंटिन्यू, बस आप बोलते रहना कि किसका क्या नेम है, जिसका समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ आएगा मैं लिखूंगा यहीं पे। ठीक है, ओके। सो नेचर ऑफ रेडिकल बाय द वे, सो रेडिकल आपको पता ही है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देन -H, क्या यूज करते हो आप इसमें, दैट इज आइल, अल्काइल ना, रिमेंबर, आइल लगाते हो या नहीं लगाते यार, जल्दी बता दो प्लीज। यस सर। ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, तो लगाते हो दैट इज इनाइल, रिमेंबर, तो इसको क्या बोल देते हो, एल्काइल इनाइल, है ना, सो एल की नाइल बोलते हो, ठीक है, कॉमन नेम आई एम टॉकिंग अबाउट हियर। ठीक है, एल की नाइल, ओके, लास्ट वन, थर्ड, if we remove one hydrogen then yes my dear, इनाइल के बाद क्या बन जाएगा, आइनाइल, रिमेंबर, Alkyl. एल्काइनाइल, है ना, एल्काइनाइल। चलो फिनिश हो गया। तो आफ्टर दिस फॉर्मेलिटी लेट्स मूव अहेड, दैट इज आवर नेक्स्ट कैटेगरी एंड लास्ट कैटेगरी इज, यस प्लीज, सेकेंडरी सफिक्सेस। रेडी? ठीक है, तो फर्स्ट भी समझ में आया था, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। अब हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन ग्रुप को मैं मेंशन करने वाला हूं वन बाय वन, ओके, राइट, एंड वी हैव टू मेंशन हियर अ लॉट ऑफ एग्जांपल। तो जब तक आप यस नहीं बोलोगे मैं एग्जांपल लेता रहूंगा, दैट्स इट। सो प्लीज अभी आप रिस्पॉन्स करना। ठीक है, तो ये भी आपको ऑलरेडी पता था, वर्ड रूट से भी फेमिलियर हो, इससे भी फेमिलियर हो जो मैंने लिखा है, एनीवे। सो लास्ट पॉइंट अंडर दिस कैटेगरी, और मैंने होमवर्क पहले ही दे दिया है, वो क्या है, एनसीईआरटी पेज नंबर 330 अप्रोक्स, मुझे शायद इतना याद है, अराउंड 330 पे है कुछ एक्सप्लेनेशन। सो प्लीज आप वो सारा पढ़ना कि कार्बन चेन को आप कैसे सेलेक्ट करते हो, ये एनसीईआरटी की बुक है, उससे पढ़ना। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट क्या है अभी, फिफ्थ, है ना, फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट, मैंने बोला था सेकेंडरी से स्टार्ट होगा और सेकेंडरी पे एंड होगा, रिमेंबर? याद है नहीं सबको? ओके, Yes, sir. बस फिर इतना तो सिंपल है, वो कुछ भी नहीं है। चलो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने बोला था ना कि जो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो कौन डिसाइड करेगा, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। एंड व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म फंक्शनल ग्रुप बाय द वे, it may be any kind of atom or group of atoms, right, which can decide the chemical properties as well as physical properties, right, of an organic compound. ठीक है my dear, तो functional group क्या है, number of functional groups, yes please, is certain, that limited, बहुत कम है, but millions billions of organic compound है। so common sense ये बोलता है कि भाई फिर रोल किसका है, रोल किसका है, रेडिकल का रोल है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। तो जब तक आप ये नहीं बोल देते मैं एग्जांपल लेते रहूंगा, सो प्लीज आप जल्दी से रिस्पॉन्स करना, जो जल्दी समझ में आ जाएगा हम उस पर टाइम नहीं देने वाले। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो किस पे टेस्ट देना है आपको। चलो बेटा मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ से, सबसे पहला रहेगा सीरियल नंबर, राइट, मैं मोर देन ए डोजन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये समझ लेना लास्ट डिस्कशन है इसका, फिर हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ द, यस माय डियर, here is name of the class, क्लास का नेम क्या है, ओके, एंड here is the functional group, कि भाई ये जो फंक्शनल ग्रुप है इस क्लास का उसको क्या बोलते हो, व्हाट, राइट, हाउ वी कैन इंडिकेट दैट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, राइट माय डियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट आ जाएगा बच्चे, दैट इज नोन एज सेकेंडरी, यस प्लीज, सफिक्स और प्रेफिक्स, हाँ सफिक्स, रेडी, एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो अभी मैं काफी स्टेज देने वाला हूँ एग्जांपल पे, तो जल्दी से शुरू करो बच्चे,
फर्स्ट सीरियल नंबर में पहला फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, दैट इज नोन एज, यस प्लीज, नेम ऑफ द क्लास। चलो अल्कोहल से शुरू कर लेते हैं, अल्कोहल। ओके, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका? OH, रिमेंबर, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं। यस सर। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अरे नेम से ही आता है माय डियर, आप यहीं पे चेक करो, ओल है ना, OL ओल, ओल है ना, तो बस यहां से क्या लग जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स ओल लग जाएगा, ओल, OL, दैट्स इट, राइट। ओके देन, सो चलो जल्दी से एग्जांपल करो, ये सिंपल है, आगे बढ़ जाते हैं ऐसे फिर सर थोड़े। कीटोन का भी कर लेंगे ना। सब कैसे ही करेंगे, तो मैं भी कॉमन नेम भी ले रहा हूँ, इवन मैं कोई फंक्शन ग्रुप यहाँ पे स्किप नहीं करने वाला हूँ, एक बार मैं सबको मेंशन करूंगा, राइट, इंक्लूडिंग एस्टर, एनहाइड्राइड, व्हाटएवर, मोर देन ए डोजन, ठीक है, राइट। सो चलो एग्जांपल ले लो, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो। सबसे पहले मैं करना क्या है, कॉमन नेम बताना है, उसके बाद में आयुपैक नेम बताना है, रेडी? ठीक है, चलो नेम प्लीज बोलो। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोपेनॉल। मेथ एथ प्रोपेनॉल, ठीक है, हो गया। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है, आई से मैं आईयूपैक नेम बोल रहा हूँ, राइट, और सी से कॉमन नेम, रेडी, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो में। हाँ बोलो फिर, आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप, ठीक है, एन। अच्छा एक रूल और भी तो है इसमें, थोड़ा सा मतलब इंग्लिश जो ग्रामर होता है उसके आप प्लीज आप एक बार देख लो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ से वोवेल सिस्टम आ जाता है तो क्या करना पड़ता है, प्लीज नोट डाउन कर लो आप इसको, हालांकि बहुत छोटी सी बात है बट इससे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा नेम अगर आपने ऐसा कर लिया तो, छोटी सी बात है, प्लीज पे अटेंशन। एक तो आईपीएससी वालों ने पता नहीं क्या किया हुआ है, इतने सारे रूल रेगुलेशन बना दिए यार, हालांकि मैं मतलब हर एक को यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता, कुछ कॉमन सेंस भेज दिए। एनीवे, सो वोवेल, इन केस ऑफ वोवेल्स, राइट, पता ही होगा क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, रेडी, राइट, इन केस ऑफ वोवेल्स, राइट। और फिर क्या होता है दूसरा, कॉन्सोनेंट, क्या बोलते हो आप उसको, यही बोलते हो ना, ठीक है। अब आप चेक करो क्या नेम है इसका, प्रोपेन है ना, प्रोपेन प्लस ऑल। अब आप चेक कर लो, ये जो माय डियर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नेम, वो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है ना, अल्कोहल में ओल, ओके। सो वी हैव टू रिमूव दिस ई, राइट, मतलब इसका नेम क्या होगा, कॉमन, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है शुरू शुरू में। क्या नेम लिखोगे आप, प्रोपेन ओल लिखोगे ना, बट ये क्या है, ये गलत है, क्यों है ये गलत? NOL। हाँ बस, अब हमें लिखना क्या है इसमें, प्रोपेनॉल, मतलब मैंने यहां से क्या रिमूव कर दिया, ई, समझ में आ गया होगा सबको, राइट, है ना। तो माय डियर अगर यहां से आप सेकेंडरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स अगर स्टार्ट होता है वोवेल से, AEIOU, देन वी हैव टू रिमूव ई, वी हैव टू रिमूव ई, राइट। ई किसका, ई प्राइमरी सफिक्स का ना, ठीक है ना, तो ई हटाना है हमें इसका। तो आप देख सकते हो उसका जो रियल नेम है वो ये है, तो कभी आपको ई लिखा हुआ मिलेगा यार, कभी नहीं मिलेगा, तो कंफ्यूजन रहेगा ये चल क्या रहा है ना, ठीक। तो अगर मैं नेम लिखता हूं नाइट्राइल, चलो क्या नेम लिख दिया मैंने इसका, नाइट्राइल नेम लिखते हैं नाइट्राइल, तो नाइट्राइल तो एन से शुरू होता है ना, तो एन उसमें लगेगा, है ना, समझ गए आप? नहीं, जल्दी बताओ, yes और नो प्लीज। सर ये नाइट्राइल हाँ हाँ, अरे एग्जांपल में लेने वाला हूँ यार, अभी सारे एग्जांपल लेने वाला हूँ, वेट अभी, बस इतना बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ई हटाना है बस, Yes. इतने सारे रूल रेगुलेशन यार है, चलो हटा दिया। कॉमन नेम बताया जाए प्लीज, मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हो आप, ये प्रोपेन ऑल हो गया ना, प्रोपेनॉल, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बोलो। भूल गए, कॉमन नेम क्या होगा यार, हाँ, प्रोपाइल अल्कोहल, और क्या है ना, मेथ एथ प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा ना, अल्कोहल लगाते हो ना आप इसमें,
तो कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्लास मैंने यहाँ पे ले ली है, दैट इज अल्डिहाइड। ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अब बनेगी सीरीज। अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप क्या होता है, मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, प्लीज पे अटेंशन। मैं लाइन फॉर्मूला यूज कर लूं, एज द नेम इंडिकेट्स माय डियर, अल, यस प्लीज, अल, दिस वन। सो क्या आप सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करोगे आप इसमें, दैट इज अल। ऑलराइट, क्वाइट सिंपल। चलो एग्जांपल ले लो जल्दी से। अब मैं एग्जांपल का नंबर बढ़ा देना अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो, राइट। नहीं कंफ्यूजन हो तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलूंगा। ठीक है, चलो शुरू किया यहाँ से। एच, यस प्लीज, सी ओ, हियर इज एच। नेम बताया जाए प्लीज। व्हाट अबाउट द कॉमन नेम, व्हाट अबाउट द आयुर्वेदिक नेम। चलो पहले कॉमन से शुरू करो, सी, हियर इज आई। सी कॉमन नेम बताया जाए। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, ओनली वन। रिमेंबर, फॉर वन कार्बन वी हैव टू यूज फॉर्म, यस और नो। यस सर। बोलो। Yes, sir. हो गया खत्म, हो गया खत्म। फॉर्म है ना, और फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड। Yes, sir. तो फॉर्मल डिहाइड, इतना सिंपल होता है यार, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, राइट। 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया था, एसिड, एसिटल्डिहाइड। 3 कार्बन के लिए प्रोपायोन, प्रोपेनॉइड। हाँ, नाम लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर है। ब्यूटाइल Anyway. वेलेर। यस वेलेर। आईपीएससी बताओ जल्दी से, आईपीएससी। मेथ, फॉर वन कार्बन मेथ, Methanol. आया ना, Methanol. मेथेनल, वेरी गुड। तो फिर से मैंने क्या किया, ई हटा दिया है, आप चेक कर लो प्लीज। मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा है, Yes, sir. मीथेन के बाद जो ई था हटा दिया है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हुआ है सफिक्स, वोवेल से। So Yes. मुझे Okay? अभी भी common But it- name में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सिर्फ okay, आयुपैक ठीक है, नेम तो ठीक क्लियर है। है, कॉमन नेम में प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ओके ठीक है, मैं अभी सारा स्टेज दे देता हूँ कॉमन नेम। चलो ठीक है, आप लास्ट लेक्चर में आई मीन प्रेजेंट थे, ओके, लास्ट लेक्चर में थे आप। Yes, sir. हाँ, अभिषेक आपको प्रॉब्लम आ रही है, Yes, sir. ठीक है अभिषेक, ओके ठीक है। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन केस ऑफ कॉमन नेम। इन केस ऑफ कॉमन नेम वी हैव टू यूज सम टर्म्स, अ फ्यू टर्म्स, राइट, एंड अ फ्यू टर्म्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज प्रेफिक्सेस। Yes, क्या sir. यूज करना है, प्रेफिक्स। Prefix. तो वन कार्बन के लिए क्या यूज करते थे आप, क्या यूज करते थे, फॉर्म, Form. रिमेंबर। फॉर 2 कार्बन एसिड, Acid. राइट। फॉर 3 कार्बन प्रोपायोन, प्रोपायोन, रिमेंबर। Oh, Four okay, sir. carbon Sir, तो prefix के ब्यूटाइल, साथ जो नो जो वो आ जो रहा है, ग्रुप आ रहा है, उसका नाम लगाना नेम, है। बस खत्म कहानी, Okay, और क्या sir. करना है। Okay, sir. देखो आपने सीरीज और पकड़ सर ली, हम C5 तक ही फाइव बात का, करेंगे। और क्या वेलेर। Well, अरे यार well. इतना ही आप कर लो, ये तो कहीं पे है ही नहीं इतना, एनसीईआरटी में तो इतना है ही नहीं, मतलब किसी भी बुक में नहीं हो। इवन मास्टर डिग्री आप पढ़ लो, वहां भी इतना नोमेनक्लेचर यूज नहीं होगा। बट हमने क्या किया हुआ है, सीरीज पकड़ी हुई है, बात खत्म हो गई। अभी Yes, देखना आप sir. क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल ले लो फिर, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें आप जल्दी से बता दो मुझे प्लीज, क्या हो जाएगा। MECOH, हियर इज, व्हाट अबाउट द कॉमन नेम। कॉमन नेम बताया जाए, आयुपेक नेम बताया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, चलो बोलो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे, प्रोपेनोइन एल्डिहाइड डाई। कॉमन कॉमन मेथ एथ, मिथाइल है ना। कॉमन नेम के लिए क्या यूज करते हो बेटा, मिथाइल अल्कोहल। स्वानी, स्वानी, दिस वन इज एल्डिहाइड, Yes, नॉट sir. अल्कोहल It's बेटा। aldehyde. मिथाइल कहाँ से आएगा, मैंने अभी तो यहाँ पे लिखा है सब कुछ। कॉमन नेम में हमें क्या यूज करना है, फॉर्म, Acid. एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वेलेर, रिमेंबर। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे, मेथ एथ, 2 है ना। दो. तो मेथ एथ हम कब करते हैं, आईयूपीएससी नेम लेते हैं, तो आईयूपीएससी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, Acetaldehyde. एसिटाल्डिहाइड। Acetal. तो यार व्हाट आर यू वेटिंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, Acetaldehyde. एसिड प्लस अल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो हमें एक भी नेम को ना क्रैम नहीं करना है प्लीज,
नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इतने ज्यादा नंबर बढ़ जाएगा ना, इनका हालत खराब हो जाएगी बाद में अगर आप पेरोटी लगा बैठोगे तो। नहीं तो एसिटाइलडिहाइड को बच्चे कैसे करते हैं कि CH3CH2 बस एसिटाइलडिहाइड, नहीं ना, हम तो और भी बना सकते हैं। चलो बाय द वे आईयूपीएसी So ने वो बताया। तो अगर Meth कार्बन eighth। एटम्स के नाम याद कर ले तो हो जाता है। इथेनॉल। फिनिश ना, ये हो तो गया। मैंने सिर्फ 5 टर्म्स यहाँ पे यूज किए, आप किसका नेम चाहते हो बताओ, विद इन फ्यू सेकंड्स, राइट? जो हमने कभी लिखा भी नहीं उसको भी लिख के आप नेम बता सकते हो। व्हाट अबाउट आयुपेक? मेथ Yes. एथ। अब चलो मेथ एथ, इथेनॉल। इथेनॉल, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाए। इथेनॉल। बस फिर, हाँ जी आगे बढ़ो फिर। Yes sir. आफ्टर दिस दैट इज थर्ड क्लास, थर्ड वन इज दैट इज एल्डिहाइड के बाद कीटोन पे आ जाते हैं। चलो कीटोन हुआ तो फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा इसका, प्लीज बताया जाए। दिस वन, ये तो क्लास होगी कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। ON। ओके, Yes sir. एंड व्हाट अबाउट द सर ये बीच में सेकेंडरी? आता है ना? यस, ओन, इसीलिए तो मैंने लिखा है, ये देखो आप, ये अब अटैचमेंट शो कर रहा हूँ मैं, Yes sir. प्लीज पे अटेंशन, Yes sir. है ना माय डियर? तो ये कैसा फंक्शन ग्रुप हो जाएगा, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल? व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज दिस बाय द वे? टर्मिनल। बेटा टर्मिनल तो एंड पे आता है यार, ठीक है? टर्मिनल मींस अरे, कॉर्नर। नहीं सर, हाँ, नॉन टर्मिनल होगा। यस प्लीज, तो ये नॉट। कॉर्नर पे कहाँ आएगा, ये तो मिडिल में आ जाएगा ना बेटा, बीच में घुस गया, बीच में आ गया हो, यस सर। है ना? और क्या है, ऑन आ गया, ठीक है? फाइनल कर ले, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड बढ़ाओ प्लीज, कम है अभी भी, मतलब मुझे फीलिंग नहीं आ रही। हाँ, शुरू किया जाए, चलो भाई। मिथॉन। अब कीटोन है तो कीटोन में तो मुझे शुरू करना पड़ेगा, आई मीन H लगाओगे तो वो तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा ना, तो कीटोन में तो कोई ना कोई अदर Yes ग्रुप sir. है ना, तो H तो यार मैं Yes, पुट नहीं कर सकता बेटा, तो एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा फिर, एटलीस्ट वी हैव टू पुट मिथाइल, है ना? चलो भाई, मिथाइल। शुरू किया। कॉमन नेम, आयुपैक नेम, बोलो। एसीटोन। एसीटोन। ओके, कॉमन नेम इसका एसीटोन है, वेरी गुड। और डाइमिथाइल कीटोन, है ना? इथॉन। 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 Yes sir. डाइमिथाइल And कीटोन यार, इथॉन। कॉमन नेम डाइमिथाइल कीटोन, खत्म कहानी। व्हाट अबाउट द आयुपैक नेम? मेथ एथ प्रोप इथॉन। इथॉन, ओ हाँ सर। इथॉन। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 2 3, you know how many carbon atoms are there? सो तो प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, तो वेरी सर गुड। इसमें एसीटोन क्यों लिखा है फिर? ये तो अगर कॉमन है ना यार, 3 कार्बन कॉमन है, कॉमन कॉमन कॉमन, प्लीज, कॉमन नेम, कॉमन है, हाँ, आईयूपीएसी नहीं है, तो इसमें कोई तो रूल सर रेगुलेशन नहीं तभी है। तो 3 कार्बन एटम तो प्रोपेनॉन ही होता है ना, कौन सा? तो प्रोपेनॉन तो 3 बेटा उसका कार्बन है ना इसमें। तो आयुपैक नेम हो गया ना प्रोपेनॉन, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। सर सर इसका कोई एक्सेप्शन प्रोपियोनोन। नहीं है। प्रोपी सर वो सर स्पेशल प्रोपियोनोन कार्बन की यूनिट वाली बात, उसमें वन बाय कितने? वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम, रेडी? कॉमन उसका कुछ भी नेम हो सकता है कॉमनली, जैसे वो सोर्स से भी आ सकता है, मैंने कितने कितने वे मैंने समझाए। वो ड्राइव नेम हो सकता है, वो सोर्स से ड्राइव हो सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कंपाउंड हो सकता है, राइट? सो कॉमन नेम उसका एसीटोन भी है जो कॉमनली हम बोलते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी है, कॉमन नेम हो गया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आयुपैक, नाउ वी हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हाउ मेनी कार्बन प्रोपेनॉन एटम्स आर? सर। खत्म कहानी। 3। प्रोपेन हो गया ना बेटा, प्रोपेन, तो ई तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि ओन, ओन मींस वो वोवेल से शुरू हो रहा है, आर यू गेटिंग? सो प्रोपेनॉन, रेडी? यस सर। अब बोलो यस और नो। सो इसका कीटोन का एक्सेप्शन भी है ना? कौन सा बताओ नेम, कौन सा एक्सेप्शन है मुझे बताओ, मैं अभी सो दूर कर देता हूँ सारे सो exception। जिसमें एक कार्बन एटम होगा। बेटा कीटोन में ना, कीटोन में एक्चुअली एक कार्बन कैसे आ सकता है, अगर मैं एक कार्बन ले लूंगा इसमें तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा ना, CH2। तो कीटोन में एटलीस्ट 2 एल्काइल ग्रुप मुझे चाहिए ना, 2 तो रेडिकल चाहिए ही चाहिए, तभी तो कीटोन बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप इज इंटरनल, राइट? इंटरनल ग्रुप है वो, नॉन टर्मिनल है वो, बीच में आएगा वो। प्रोटॉन लगा के क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, हो तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सो देयर इज नो अप्रिशिएबल डिफरेंस इन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन नाउ, बोलो यस और नो? तो कीटोन के लिए 2 अल्काइल ग्रुप तो चाहिए, यस सर। प्रोटॉन नहीं चलेगा उसमें क्योंकि वो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है? चलो यस सर। चलो आगे बढ़ो फिर, नेक्स्ट वन, फोर्थ क्लास, फिनिश द जॉब।
फोर्थ क्लास बच्चे बन जाएगा, दैट इज कीटोन के बाद मैं ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप बाय द वे? हियर इज लाइक दिस, COOH. yes please, this one is the functional group. What about the, yes Oic please, acid. suffix? Oic acid, very Oic good. acid. Yes please, oic acid हो गया. So let's talk about a few examples. चलो एग्जांपल लिया गया प्लीज. फर्स्ट एग्जांपल, चलो रेडी, फर्स्ट वन यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यहीं से शुरू कर सकते हो, H से, और पूरे यहाँ से कितनी सीरीज बन सकती है? काफी बड़ी सीरीज बन सकती है ना डियर? चलो शुरू करो. व्हाट अबाउट द कॉमन नेम? कॉमन नेम में वही 5 कार्बन यूनिट याद रखनी. शुरू कहाँ से करना है? फॉर्म, एसिड, प्रोपायोन, ब्यूटाइल, वेलेट. चलो शुरू करो. हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? स्पीड बढ़ाओ प्लीज. One हाँ, form, एक सौ एक. form, Formoic One acid. फॉर्म हो गया. फॉर्म, Formoic acid. Formoic. मोइक नहीं बेटा, Form. मोइक नहीं, Formic. इक एसिड, इक एसिड, इक. Formic Oh, acid. Formic acid. यस, अभी आप डिफरेंस देखो. अरे इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछो मत भाई. कभी तो आप बोलते हो सर इक लगाओ, कभी आप बोलते हो ओइक लगाओ. सो यार दो ही तो चीजें, हम कंपेयरिंग कॉमन नेम्स विद आयुपैक नेम. तो दिक्कत क्या है? चलो, व्हाट अबाउट द आयुपैक नेम बाय द वे? Methoic acid. Methoic Methoic? acid. मिथाइक एसिड. Methanoic. Methanoic, sorry. Methanoic acid. हाँ, अरे फीलिंग्स ही नहीं आ रही थी ना पहले, है ना? फील भी तो आना चाहिए. मिथेनोइक एसिड. So what exactly is the difference? Ic acid, that is the common name. Oic acid, that is the IUPAC name. Remember common. Common में क्या लगाना है बेटा? इक लगाना है, इक. और जो IUPAC है उसमें क्या लगाना है? ओइक एसिड, ओइक. आर यू गेटिंग? क्वाइट सिंपल. तो अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है? और अगर हमने कंपेयर कर लिया, विद इन अ फ्यू सेकंड्स क्लियर, इवन क्रिस्टल क्लियर. दैट्स इट. फाइनल है? लॉक किया जाए? Yes. हाँ, चलो. अब तो आपको सीरीज पकड़ लिया आपने. चलो, अब मैं यहाँ से कितने नेम ले सकता हूँ? एटलीस्ट 5 तो ले सकता हूँ. बस मुझे करना क्या है बेटा? ये H को चेंज करते जाना है और नेम लेते जाना है. सीरीज बन गई सबकी, है ना? चलो सेकंड So सीरीज C ले और लिया. H add करते जाना. हाँ, कुछ भी तो नहीं है. यहाँ से बस मैं क्या करूंगा? H को हटाते रहो, एनी काइंड ऑफ दैट इज रेडिकल लगाते So रहो. और ethanoic मैं, acid. यस प्लीज, अब तो आपने पकड़ ली Acetic सीरीज. acid. कुछ नहीं है वो. Acetic कॉमन नेम acid क्या होगा? and ethanoic एसेट हो acid. जाएगा. एसेट, Ethanoic एसेट, acid. इक. Ethanoic acid and acetic acid. यस प्लीज, खत्म कहानी. आगे बढ़े. ओके, हाँ जी, sir. नोइक एसिड. सो प्लीज आप एक बार प्रैक्टिस करो जब भी आपको फुर्सत मिलती है. बस अपनी बुकलेट उठाओ, अलग से नोमेनक्लेचर की बुकलेट बना लीजिए प्लीज. ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी. और मैं इनऑर्गेनिक में एक बार फिर आईयूपीएससी के साथ आऊंगा 12th क्लास में. दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. रिमेंबर, याद रखना ये बात. आईयूपीएससी इनऑर्गेनिक में भी यूज होगी इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, तो वापस आएंगे फिर एक बार हम 12th में. Yes. ठीक है? ओके, सो इसको यहीं पे रोक दिया जाए प्लीज. समझ में आ गया सबको? हाँ. Yes. इथेनोइक एसिड आगे. 8 के बाद प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक, हेप्टानोइक. Pentanoic. 10 तक Butyric 10 तक जाओ. 10 तक जाओ आप. इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुकलेट लिख दो अपनी पूरी. Valeric. यस, वेलेरिक, व्हाटएवर. सो आफ्टर कार्बोक्सिलिक लेट्स डिस्कस अबाउट द 5. चलो जल्दी करो प्लीज. यस प्लीज. एसिड, अटेंशन. एसिड क्लोराइड्स. एसिड क्लोराइड को हम एसाइल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं माय डियर? एसाइल क्लोराइड्स. Acyl chlorides. एसाइल बोलो आप, एसिडिक बोलो. चलो फिर यहाँ से शुरू करते हैं. व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व्ड? दिस वन. व्हाट अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स? यस माय डियर. ऑयल, OYL, ऑयल Oil. क्लोराइड. दैट्स इट. ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस एक बार आप डिस्कस कर लो प्लीज. फिर हम कभी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे. मैं आईयूपीएससी नेम भी लिखूंगा बार बार और कॉमन भी, जो आपका मन करे आप लिखो. ठीक है, चलो फिर शुरू कर दो जल्दी से बच्चे. यहाँ से एग्जांपल नंबर 1. कहाँ से शुरू करना है? हमेशा H से शुरू करना है. H से. H बस एक जगह नहीं लगाना So है. कहाँ पे? methanol chloride. हाँ, वेरी गुड. चलो. Methanol. व्हाट अबाउट कॉमन नेम? Sir, कॉमन फर्स्ट ऑफ ऑल. Formonoid कॉमन नेम chloride. फॉर्मेनॉइल. Formaldehyde. Yeah. Formonoid. Also.
फॉर्म Minoyl फॉर्मोइल, chloride. फॉर्म लगा दिया फिर ऑयल फॉर्मोइल लगाया, होगा ना सर? फॉर्मोइल, From फॉर्मोइल हो जाएगा, सर है एन ना? नहीं चलो लगे? खत्म करो। हाँ फॉर्मोइल होगा ना, NaO, ठीक है। हाँ सर। चलो फाइनल करो। अब क्या हो जाएगा इसका फिर यहाँ से, मेथ एथ, कितने कार्बन है? methynyl सिर्फ एक है ना, chloride. मिथेनॉइल Methynyl chloride. मिथेनॉइल। Methynyl chloride. Sorry. मिथेनॉइल क्लोराइड। चलो फाइनल किया जाए। तो फॉर्माइल हो गया, तो मिथेनॉइल हो गया, ठीक है। फिर आगे आपने सीरीज अभी कैप्चर कर लिया है सीरीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आप अपने आप कर लेना, ठीक है। मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, ओके बच्चे, ठीक है। कॉमन नेम हो Yes, गया, sir. फिर आयुपेक हो गया। कॉमन बताओ इस बार क्या होगा? एसेट लग जाएगा, Acetyl Acetyl chloride. Acetyl Acetyl chloride. इथेनॉइल क्लोराइड। देखो अच्छा And एक तो ethanol है, chloride. एक लगेगा आइल क्लोराइड, एक लगेगा ऑयल क्लोराइड। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्लीज, जैसे कि एक एसिड था और ओइक एसिड था, ऐसे इसमें भी, ठीक है। तो जो ये कॉमन होता है ना बेटा, उसमें ऑयल नहीं लगता, आइल लगता है। क्या लगता है उसमें? आइल। हाँ तो ये भी मुझे Acetyl हटाना chloride. पड़ेगा। हाँ तो ये डिफरेंस आएगा बच्चे इसमें, तो Formyl प्लीज पे chloride. अटेंशन। यस ये लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा? आइल क्लोराइड, I प्लीज। यस नॉट ऑयल। तो शुरू में तो इतना कंफ्यूजन होता है कि पूछो मत, बट क्या होगा, क्यों सर, एक बार इसमें बस क्यों क्लियर हो लगेगा जाए ऐसा? कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों होगा सर? बेटा कॉमन है वो, कॉमन में आइल लगाते हैं हमेशा। कॉमन में आइल लगाते हैं, ठीक है, नॉट ऑयल। ऑयल आयुपेक नेम है, जैसे इक एसिड था वो कॉमन था, ओइक एसिड था वो आयुपेक था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कंपेयर करो, दैट्स इट। नहीं तो इसी में रह जाएंगे फिर तो, इतने फुर्सत का है हमारे पास। बोलो बेटा। acetyl chloride. एसिटाइल, यस प्लीज, ब्रेक Ethanol द साइलेंस, chloride. जल्दी बोलते रहो। Ethanol chloride. इथेनॉइल मेथ एथ, Ethanol chloride. इथेनॉइल क्लोराइड, फाइनल किया। सर चलो आगे बढ़ो। TH सॉरी माय डियर, इथेनॉइल में TH। ओफो यार मिस प्रिंट हो गया, इतना तो अपने आप कर लो यार प्लीज, हाँ है ना? यस सर। ओके हाँ चलो ठीक है, चल मैं इसको भी सुधार देता हूँ, आप बोलते रहो बस। क्या लिखना है बेटा? Ethanol chloride. इथेनॉइल, इथेनॉइल। इथेनॉइल क्लोराइड। चलो फाइनल किया, सीरीज पकड़ ली ना, अब आगे कर लोगे अपने आप। कहाँ तक Yes, sir. जाओगे आप? हाँ जी, हेप्टाइल ऑक्टाइल सारा कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बस वन टाइम एक सर बार एक लिख बार लो प्लीज लास्ट मेरे ख्याल। एग्जांपल दे दो, एक लास्ट एग्जांपल। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, बताओ कौन सा लेना है, कितने कार्बन यूनिट मुझे लेनी है? आप बोलोगे, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कौन सा लूं? Deck. चलो थर्ड ले लो। डेक, इतने ऊपर जाना है? हाँ थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। चलो इस बार ऐसा कर लेते हैं, इसको बढ़ा देते हैं इस तरह से, है ना डियर। चलो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? 1 2 3 4 4. 5 तक नहीं यार, 4 ही तो 4, है। sir. 4. कॉमन हो जाए पहले, कॉमन, उसके बाद में आयुपेक। चलो ब्यूटाइल हाँ क्लोराइड। ब्यूटराइल। Ethyl chloride. ब्यूटराइल नहीं, ब्यूटाइल ही तो आएगा बस। मेथ Butyl एथ chloride. प्रॉप ब्यूट, Butyl chloride. अच्छा उसका है R ना? एलिमिनेट हो जाएगा। ब्यूट। हाँ ठीक है। सो ब्यूटाइल क्लोराइड, Butanol चलो chloride. व्हाट आयुपेक? मेथ एथ प्रॉप, Butanol chloride. ब्यूटेनॉइल Chloride. क्लोराइड, यस प्लीज। चलो फाइनल, आगे बढ़े, Yes, sir. ठीक है। कौन सा नंबर था भाई क्लास का? 5 6 कौन सा था यार? 5। 5. चलो 6 नंबर, ठीक है, रेडी। 6 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज इसमें, आई मीन हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है, बट एस्टर का हम काफी सीरीज बना सकते हैं, एस्टर का आप देख सकते हो। तो 6 नंबर इज दैट इज एसिड एमाइड। एस्टर कहाँ चला गया? एस्टर आएगा अभी थोड़ी देर के बाद आएगा एस्टर। चलो मैं सीरीज ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं। 6 नंबर पे हम बात करते हैं, दैट इज एसिड एमाइड। चलो लेट्स फिनिश द जॉब। एसिड एमाइड्स, ओके माय डियर, इट इज आल्सो नोन एज, यस माय डियर, एसाइल एमाइड्स। एसाइल एमाइड्स, मेरी राइटिंग समझ आ रही है ना? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हाँ है? जी सर ठीक।
एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहता था पहले, ठीक है, मेरी स्टोरी कभी सुनोगे तो मतलब आप देखना। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मैंने राइटिंग डॉक्टर वाली बना ली, ठीक। बाद में फिर मेरा बायोलॉजी पढ़ने में मन नहीं लगा, फिर मैंने उसको छोड़ के केमिस्ट्री शुरू की, राइट। तो राइटिंग वैसी रहेगी मेरी यार डॉक्टर वाली। एनीवे, सो एसिडामाइड का क्या फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बोलो प्लीज। CONH2, रिमेंबर, इतनी Yes, बार sir. मैंने मेंशन कर दिया, तो सब रट गया होगा, ये कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है मुझे। तो अब जो भी हम ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं ना, हाइड्रोकार्बन में मतलब स्पीड कम से कम 3G होनी चाहिए, 2G में तो नहीं चलेगा जी। अभी अमाइड था, सो व्हाट अबाउट द सेकेंडरी, यस प्लीज, सफिक्स बाय द वे, अमाइड ही रहेगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें, अमाइड का अमाइड। चलो एग्जांपल लिया जाए, ओके माय डियर, चलो एग्जांपल ले लो प्लीज। अमाइड का अमाइड ही रहेगा, शुरू करते हैं यहाँ से, HCONH2, रेडी। Yes, sir. चलो नेम प्लीज, कॉमन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, देन IUPAC, Formide. रेडी। Formide. बोलो बताओ। Formide. फॉर्म एमाइड, फॉर्मामाइड हो जाएगा बेटा, फॉर्मामाइड है ना, Yes, sir. क्योंकि फॉर्म एमाइड, फॉर्म प्लस एमाइड, सर लिखा फॉर्मामाइड। हुआ है, बस लगा कि प्रोनाउंस अलग होगा। Methanide. मिथ 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 यस प्लीज, व्हाट अबाउट नेम, Methanide. मिथामाइड। मिथेमाइड, Methanide. हाँ Yeah, methanide. मिथेनामाइड। So, हाँ मिथेनामाइड। मिथेनमाइड, मिथेन, देखो अब ई नहीं लगाना है ना, yes, क्योंकि वहां से कहां से शुरू हो रहा है, अमाइड, सो इट इज नोन एज मिथेनामाइड, राइट, व्हाट, मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। ऐसे बोलते हैं। तो बस अगर नेम ले दिया ना तो बस हम सोचते हैं यार ये चल क्या रहा है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो एक बार कंपेयर सर कर लिया है, लिखने में that's सही it। है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अभी तो सीरीज हमने बनाई है ना, हो जाएगा, जब हम यूज करेंगे ना बार बार, फिर देखना। Acetamide. एसिटामाइड। हो गया फिनिश। Ethanamide. IUPAC बताओ पहले, इथेनामाइड। मेथ एट, Acetamide. इथेन एमाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड, यस प्लीज। व्हाट अबाउट कॉमन नेम, Acetamide. एसिड, Acetamide. मेथ एट, एसिडामाइड। अच्छा सर आपने आई एसिटामाइड, पर इस बार सी नीचे। हाँ कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, IUPAC है ना। आगे क्या होगा अपने आप बताते रहो। एसिटामाइड के बाद प्रोपेनामाइड, ब्यूटेनामाइड, पेंटेनामाइड, हेक्सेनामाइड, समझ आ गया। yes, Valeramide. sir. वेलेरामाइड उसी सीरीज में चल लो आप। सर Valeramide हो गया Valeramide. वेलेरामाइड होना चाहिए। तो वेलेर है Valeramide ना, होगा ना? वेलेर, वेलेर एमाइड, हाँ हाँ ठीक है, वेलेरामाइड, कोई इशू नहीं, बात तो वही है। तो जो चीज हमने लिखी नहीं है हम उसका नेम ले सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज ना, ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सो आफ्टर कौन सा नंबर था भाई, नंबर बता दो कौन सा था, 6, ठीक है, 7, 6 7 इसको, हाँ हाँ, तो मुझे इसे फिनिश करना है बेटा अभी, तो प्लीज गौर से देखते रहो क्या चल रहा है यहाँ पे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी अब तो बस आपको असाइनमेंट देना है मुझे, ठीक है। थोड़ी सी और रहेगी जो मैंने होमवर्क ऑलरेडी दे दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, NCERT, ठीक है, पेज नंबर 330 अप्रोक्स, इतना होगा उसमें, जो भी होगा उसमें नंबरिंग के रूल्स हैं। कितने रूल्स दिए गए NCERT में, 5 to 6 रूल्स हैं, आप उनको प्लीज, हाँ yes, sir. पढ़ लिया ना, वेरी गुड, Yes, sir. बस बहुत अच्छी बात है। तो मैं फिर क्या करूँ, एक DPP बना के ग्रुप में डाल दूँ फिर कल या टुमारो, और टुमारो का नेक्स्ट, नहीं सर, अभी है ना? हमने नहीं पढ़ा सर, आज रुक जाओ, फिर 2 दिन बाद या सर, अभी आज So पढ़ लेते हैं। अब भेज दो, बट कर बाद में लेंगे। हाँ तो मैं एक DPP डाल दूंगा ना उसमें ग्रुप में, हाँ सर, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करके देखना Yes, sir. कितना समझ में आता है ना बेटा, Yes, sir. राइट, फार बेटर, फिर मैं डिस्कस करूंगा स्क्रीन पे, क्या दिक्कत है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। सो आफ्टर दिस दैट इज एनहाइड्राइड, लेट्स टॉक अबाउट एसिड, यस माय डियर, एसिड एनहाइड्राइड, व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्योंकि सबसे बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप है, राइट माय डियर। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, CO O CO, दिस वन, अब देखो आप, है ना, साइज में मतलब ये सबसे बड़ा सा लगता है ना, और है भी बियॉन्ड एनी डाउट। ओके माय डियर, सो व्हाट अबाउट द सेकेंडरी, So ये नॉन टर्मिनल है ना? यस इंडीड, आप देख सकते हो दोनों साइड में क्या अटैच है, आप देखो ना भाई, Okay, sir. रिकॉग्नाइज करना Yes, कितना sir. इजी है, राइट, बीच में आएगा ना, ये मिडिल में आ जाएगा, ठीक, Yes, sir. लेफ्ट साइड भी कुछ ना कुछ अटैच करना है मुझे, और राइट साइड भी, दैट्स इट। ओइक एनहाइड्राइड बाय द वे,
ओइक एनहाइड्राइड। इसमें भी सेम होगा, कॉमन में आएगा इक एनहाइड्राइड, आयुपैक में आएगा ओइक एनहाइड्राइड, राइट। ठीक है, शुरू किया। मैं इसमें अब एग्जांपल लूंगा अभी। तो इसमें कॉमन नेम्स नेम लेते हैं और चेंज भी करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, चॉइस है, राइट। जहां पे डाई सिस्टम होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके माय डियर, क्योंकि वहां से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट जो रेडिकल चेन है उसको चेंज कर सकता हूँ। एक तरफ सपोज मैंने मिथाइल लगाया, दूसरी तरफ इथाइल लगाया, तो मिथाइल अलग साइड हो गई, इथाइल अलग साइड हो गई, तो नेम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, राइट। ओके देन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, let's start with H. Common name, IUPAC name. बोलते रहो, this one is the common, this one is the IUPAC. Getting my dear? एसिटोइक हाँ, yeah. जितना समझ में आता है आप मुझे बता दो, मैं लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर इनको प्रोनाउंस करना बहुत हैक्टिक है सर, लिखने से ज्यादा और इनके स्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा। तो कोई बात नहीं है, सो ये दोनों इजीली हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुश्किल है। नो इशू एट ऑल, अभी हमने जस्ट शुरू किया है, सब आ जाएगा, है ना। इथेनोइक अनहाइड्राइक। सो वैसे भी लगता मुझे भी गलत है कि प्रोनाउंस करते हैं तो लगता है कि गलत कर दिया। कोई इशू नहीं है, आप बोलते रहो, मैं एग्जैक्ट बता दूंगा जो भी है ना। तो आप लिख दिया करो, इट वुड बी फार बेटर। कॉमन क्या रहेगा, कॉमन में क्या लगाना है, फॉर्म, जल्दी बताते रहो प्लीज। फॉर्म्स हाँ फॉर्म लगाना है ना। फॉर्मिक देखो बेटा ये रहा, फॉर्मिक एंड हाइड्राइड। फॉर्मोइक नहीं, इक, यस, ठीक है, फॉर्मिक एंड हाइड्रिक। फॉर्म प्लस, यस प्लीज, इक एनहाइड्राइड, एक एंड हाइड्रिक अनहाइड तो फॉर्मिक एनहाइड्राइड, रेडी, एंड ठीक है। हाइड्रिक। चलो गुड, अब हम आ जाते हैं दैट इज आयुपैक पे, मेथ, है ना। क्या आएगा बताओ प्लीज नेम एनहाइड्राइड में, मिथेनोइक अनहाइड। यहां से आ जाएगा दैट इज मिथेन ओइक एनहाइड्राइड, और ये है कैसा, सिमेट्रिकल है, चेक करो दोनों साइड Yes. सेम है ना, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल। Yes, इसका sir. बताओ, फिर मैं सिमेट्री चेंज करने वाला हूँ बेटा, इसका बताओ जल्दी से, कॉमन एसिड फॉर 2 कार्बन एटम्स, रिमेंबर, मेथ एथ, मेथ एथ आएगा, एसिड, एसिटोइक and एनहाइड्राइड, acidic anhydride. एसिटिक, एसिटोइक, इथेनोइक Acetic. अनहाइड्राइड। नॉट ऑइक, Acetic ऑइक, होगा। Acetic नीचे नीचे सर, यस यस यस, देखो आप यहाँ पे देखो, इक हाँ, ये तो एनहाइड्राइड, आइस। ओइक एनहाइड्राइड, इक एनहाइड्राइड कॉमन, ओके बच्चे, ओइक एनहाइड्राइड आयुपैक, ठीक। हाँ सर, एक मैं बार नीचे वाला बता। वन टाइम कंपेयर करना है, तो एसिटिक इक एनहाइड्राइड, ठीक है। इथेनोइक अब इस सारे नोमेनक्लेचर की Ethanoic धज्जियां उड़ जाएंगी अब जब anhydride. हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यस प्लीज, हाँ बोलो, इथेनोइक Ethanoic anhydride. ओइक अनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, चलो फाइनल किया। अब सर मैं ये लास्ट एसिटिक एग्जाम, अनहाइड होएगा ना फिर तो सर, क्योंकि ऊपर फॉर्मिक अनहाइड है। तो ऊपर फॉर्मिक है तो नीचे एसिटिक हो जाएगा ना, एसिड यूज करते हैं ना नहीं बेटा सर, 2 कार्बन पे। अनहाइड वो ऊपर अनहाइड है और नीचे अनहाइड्राइड है। ओ यार राइड है, वो मिसप्रिंट हो रहा है, एनहाइड राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड है वो, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो एक बार मैंने बोल दिया वही है। तो थोड़ा Yes. बहुत मिस्टेक हो जाता है प्रिंटिंग में, बट नो इशू, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ समझ में आता जा रहा है, तो क्यों टाइम वेस्ट किया, है ही नहीं हमारे पास टाइम। बोलो बेटा जल्दी से, जस्ट और नो, लास्ट एग्जांपल है, सोच समझ के नेम बताना है इस बार, ठीक है। अभी तक हमने क्या जिक्र किया है, दैट इज सिमेट्रिकल। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इसका सिमेट्री चेंज कर देता हूँ, और क्या बना देता हूँ इसको, अनसिमेट्रिक, यस प्लीज, अनसिमेट्रिक हो गया माय डियर इस बार ये, रेडी। चलो बेटा कॉमन बताओ, उसके बाद में Yes, sir. आयुपैक बताओ, अगर ये समझ में आ गया बस फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके। हाँ बोलो बच्चे।
हाँ कॉमन बताओ। देखो लिसन केयरफुली, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं, तो एसिड तो इसके लिए यूज हो गया। बोलो बेटा यस और नो, बस या तो यस या तो नो। Yes, sir. Acid. Yes, yes sir. sir. ओके बच्चे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? मैंने जानबूझ के इटी लिखा है सो दैट कंफ्यूजन हो Three. बच्चे। 2 3 5 शाबाश। so 5 होने चाहिए। फिर तो 5 बेटा 3 Five नहीं कार्बन। होगा। नहीं One. सॉरी सो तीन मैथ्स में हाँ, तो- एक और इसमें 2 हाँ तीन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? सो मैं कुछ और C2H5। लिख के बोल रहा था। कोई बात नहीं, अभी इतनी भी जल्दी नहीं आ रहा, मैं इतनी भी जल्दी नहीं। मेथ एथ प्रोप क्या लिखोगे बेसिक में? प्रोपायोन। प्रोपायोन रिमेम्बर। अब Yes, sir. आईयूपीएससी वालों, Yes, अब क्या करना है, चाहे तो आईयूपीएससी नेम हो चाहे कॉमन हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। किसमें चलना है नेमिंग में? अल्फाबेटिकल मींस एसेट Alphabetical. ए पहले आता है पी से, राइट? तो कैसे नेम होगा जल्दी बताया जाए। Yes, sir. ब्रेक द साइलेंस, ब्रेक द साइलेंस बच्चे। हाँ बोलो Sir, क्या लिखेंगे पहले? acid propionic anhydride. एसिड Acid propionic hydride. लिसन केयरफुली, Acid एसिड propionic प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। मतलब N के बाद IC है और उसके बाद anhydride है। तो एसिटिक, सबसे पहले तो एसिटिक आ गया, इसके बाद क्या आ Yes, गया sir. बच्चे? प्रोपाय, देखो मुझे भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है बट कॉन्सेप्ट क्लियर है सारा, है ना डियर? प्रोपायोनिक प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। हालत खराब हो Anhydride. जाती है, नेम देख के हालत खराब हो जाती है। ये क्या चीज है? देखना जरा क्या लिखा है हमने। ओरल टेस्ट फेल हो एसिटिक जाएंगे। प्रोपायोनिक एनहाइड्राइड। किसी को जरा बोल देना नेम के भाई, बनाना जरा स्ट्रक्चर, फिर देखो ठीक उसी सर, दिन इसका बोलेगा अगर तो सर। test हो गया कंपाउंड तो का फिर गड़बड़ हो स्ट्रक्चर जाएगी। देख के ठीक लग रहा है, बट अगर हम्म। क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए तो डर लगता है। मुझे तो नहीं कंपाउंड लग, ही देख के प्यारा लगता है बहुत ज्यादा। अब नहीं लगे, अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, जब मैं यूनिट टेस्ट रखूंगा सब सिर्फ नेम दूंगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं दूंगा, पहले रिवील हो गया। और बताओ ठीक है, फिर देखते हैं क्या बनाते हो आप। इस बार मैं क्या सो तो दूंगा, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉमन। बनाने के लिए दोगे? हाँ बिल्कुल, यही तो टेस्ट होगा। मैं सिर्फ नेम सर लिखूंगा ऐसे, ऐसे भी एसिटिक एग्जांपल्स करवा प्रोपायोनिक। देना अभी प्लीज। हाँ कर लो, ऐसे भी क्यों नहीं, एग्जांपल। ठीक है कर लेंगे। चलो बेटा आयु बताओ जल्दी से भाई, सर ये अनसिमेट्रिक है ना? सर अराउंड हमारे कब होंगे यूनिट टेस्ट एंड एग्जाम्स? 15 डेज बोला था कल। हाँ आई मीन मेरे अभी 2 यूनिट टेस्ट पेंडिंग में है। एक तो मैं पहले जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मैं उसका एक यूनिट टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, वो आप डिसाइड करोगे कि मैं पूरे चैप्टर का एक ही यूनिट टेस्ट रखूँ या फिर मतलब 2 रखूँ या 3 रखूँ, क्योंकि लैंग्वेज है वो आप देख लेना। ओके, मैं टेस्ट भी ले सकता हूँ, मैं 2 भी कर सकता हूँ, उसका 50-50, राइट? सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस प्लीज लेट मी नो। ओके बच्चे? ओके सर। इसके बाद में फिर ये हम इसका भी देख लेंगे अभी, जितना अभी तक हुआ है। मतलब अगर 10 लेक्चर है तो पहले 5 लेक्चर का मैं टेस्ट ले लूंगा, फिर 5 लेक्चर का लास्ट में, राइट? तो यूनिट टेस्ट जरूरी है ना बेटा, बिना यूनिट टेस्ट के तो चलेगा नहीं। मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कितना समझ में आ रहा है, हालांकि यहाँ तो रिस्पॉन्स ठीक है। ओके हाँ बोलो जल्दी से, विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। सर जल्दी। एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक, शाबाश। इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, वेरी गुड, क्या बात है, एनहाइड्राइड। ये होगी ना बात। अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अब नोमेनक्लेचर उड़ने वाला है सारा, एनहाइड्राइड। और जितना नोमेनक्लेचर फास्ट होगा उतनी फास्ट में स्ट्रक्चर लिखूंगा, और जितने स्ट्रक्चर फास्ट लिखे जाएंगे ना उतनी फास्ट मैकेनिज्म चलेगी। तो मैकेनिज्म तो बाद की बात होती है, पहले स्ट्रक्चर तो पता चले भाई, क्यों भाई? ठीक है बेटा, सबसे बड़ी हेडेक होती है स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करना। ठीक, तो हम लोग क्या है, कॉमन नेम से भी फेमिलियर है, आईयूपीएससी नेम से भी फेमिलियर है, राइट? कॉमन नेम मैंने 3-4 वे में बताया, सोर्स वाले नेम से भी बताया कि किस सोर्स से बना व्हाटएवर। तो ये कॉमन और ये दोनों फेमिलियर हैं। आगे बढ़ूंगा अब मैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। यस सर। अनसिमेट्री भी समझ में आई? यार मेरा लैपटॉप तो डेड होने वाला है, Yes, लग sir. नहीं है। कोई बात नहीं, खैर मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, ठीक है, इससे पहले ये लैपटॉप मेरा गायब हो। हाँ ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास कौन सा नंबर था, जरा बताना कौन सा नंबर था?
6 हाँ, 7 eight कौन सा था यार? 8 तो होगा, 8 तो होगा। 8 है ना, अब तो eight 8 पे होगा। चलो। एस्टर है। अब देखना जरा मैं एस्टर में कितना नेम लिखता हूँ। एक एस्टर ग्रुप से मैं आपको मोर देन 100 नेम्स बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे। OATE अब देखना कैसे। मोर देन 100 सिर्फ एक ग्रुप से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे थोड़ा ही नहीं इतनी बड़ी है। मैंने बोला था 10,000 कंपाउंड, याद है ना मेरा टैगलाइन? जब भी कुछ हो तो बस 10,000 कंपाउंड। Yes, my dear, more than 10,000 compounds are added each and every year into the list, right? So, ester, what about the functional group? जल्दी बताया जाए प्लीज। CO, बोलो। OR, होता है या नहीं है? यस प्लीज। OAT एस्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा? रेडिकल नेम। अभी देखो जरा मैं क्या लिखने वाला हूँ प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, हाईली इंपॉर्टेंट। रेडिकल, रिमेंबर प्लीज, रेडिकल नेम प्लस O8। देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, राइट? रेडिकल नेम प्लस O8। एग्जाम्पल शुरू किया जाए विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। चलो भाई शुरू किया गया। एग्जाम्पल, हियर इज H, राइट? CO, राइट? एस बना लो चाहे एमई से बना लो। चलो फॉर्मेट से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमें शुरू करनी होती है सीरीज, कहाँ से शुरू करते हैं आप मुझे खुद बताओ। फॉर्मेट से शुरू करते हैं ना। फॉर्म, फॉर्म मतलब फॉर 1 कार्बन, है ना डियर? रेडी? yes, ओके बच्चे, सो यहाँ से शुरू किया मैंने O, और यहाँ पे मैंने चिपकाया दैट इज एमई। रेडी? तो yes, नेम sir. कैसे लोगे बताओ? चलो शुरू कर देते हैं। नेम बता दो बेटा, इसका कॉमन बताओ पहले, फिर आयुर्वेद बताओ। कॉमन में कैसे करना है? सबसे पहले मैंने क्या बोला है? रेडिकल का नेम लेना है। ले दो फिर। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? व्हाट अबाउट द नेम ऑफ रेडिकल? मिथाइल, Methyl. है ना? मिथाइल। देखो जो कॉमन नेम होता है, कॉमन, कॉमन में क्या लगाते हो बेटा? 8, ATE 8। IUPAC में क्या लगाते हो? IUPAC, O8। सो देयर इज अ डिफरेंस 8 एंड O8। रेडी? रेडी? सो मिथाइल शुरू किया। चलो बेटा शुरू किया। अब आप मुझे ये बता दो, जो कॉमन नेम आप लोगे इसके बेस पे लोगे ना, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे? मिथाइल फॉर्म, एक लगेगा ना? फॉर्म। अरे यस और नो? मिथाइल Yes, sir. yes क्या sir, रेडिकल yes का sir, नेम? format इफ इट, यस देखो आपने बता दिया, फॉर्म प्लस 8, सो मिथाइल फॉर्मेट। ओके बेटा, ये हो गया ना? ठीक, इतना सा। तो अब आप मुझे जल्दी से बता दो, ये जो चीज मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ना, ये आप ये देखो, इसको क्या बोलोगे? ये होगा बच्चे यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से चलेगा इस टाइप से। मैंने सीरीज बना दिया। एक सीरीज से मैं क्या कर सकता हूँ? 10 नेम्स बना सकता हूँ। कितने बना सकता हूँ? 10। Yes, sir. ठीक है, आप देखो जरा मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे भी। ठीक, मतलब बाहर आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्स की, इतना लिख सकते हो आप। ठीक, यस प्लीज, इसका नेम क्या हो सकता है? ये हमेशा के लिए बन गया आज के बाद फॉर्मेट। और ये क्या बन गया बेटा? जल्दी बताते रहो प्लीज। एसीटेट, हाँ या ना? और ये Yes, क्या sir. बन गया? मेट 8 प्रोप, propane प्रोपे, propate नो 8 प्रोपे, propane तो लास्ट में सर 8 होगा इसके। प्रोपेनेट, सर लिख दो हाँ आप सर, प्रोपे, बोलने में दिक्कत। प्रोपेनेट, है ना? प्रोपेनेट करोगे या प्रोपायोनेट करोगे बताओ? सर प्रोपायोनेट, propionate होगा ना? यस, है ना? अरे अपनी वही तो सीरीज है यार, 5 वाली। यस करना सर, क्या यस है? सर। propane फिर प्रोपाइल। कॉमन नेम हो जाए। अपना क्या किया हुआ हमने? यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 5 कार्बन यूनिट्स तक हम विद इन अ फ्यू सेकंड्स पहुंच सकते हैं। सो प्रोपायोनेट, राइट? प्रोपायोनेट। अब करना क्या है? ये जो आप देख रहे हो ना बच्चे यहाँ पे, ये देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मिथाइल लगाओ, है ना? इस पे मिथाइल लगाओ जल्दी से। मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, प्रोपाइल फॉर्मेट, ब्यूटाइल फॉर्मेट, पेंटाइल फॉर्मेट। रेडी? तो 10 नेम बनेंगे यहाँ से फॉर्मेट वाले, फिर 10 बनेंगे एसीटेट के, फिर 10 बनेंगे नाउ प्रोपायोनेट के। समझ रहे हो आप? ठीक, एंड 10 into 10 इक्वल टू 100। Butyrate हाँ, valerate क्लियर होगी बात? हाँ तो मिथाइल फॉर्मेट हो गया।
अब आईयूपीएससी में आ जाओ जल्दी से विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम। हाँ आईयूपीएससी में भी करना क्या है, बस लिख दो जल्दी से मिथाइल। भाई ये तो लिखना मैंडेटरी है ना, दोनों में कॉमन हो चाहे कुछ। मिथाइल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, इसको काउंट नहीं करना बेटा, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी नेम ले दिया है रेडिकल का, इसको काउंट नहीं करना, फिर आपने नेम ले सेपरेट दिया। हो गया। मिथाइल, सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर बाय द वे, 1। सो मिथाइल मिथे, हाँ जी, मिथाइल मिथेन O8, हाँ जी, यस और नो, यस सर। यस यस सर, और नो बच्चे। थाइल मिथाइल। So methyl methanoate is the IUPAC name. Yes or no? यस Yes. सर। बस फिर अब सीरीज समझ में आ गई है, बना सकते हो ना आप सब, जल्दी बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये एग्जांपल 1 था, मैं एक और ले लेता हूँ फिर हम वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास है ना, फिर आपको ब्रेक चाहिए है ना, और हमने बोला हुआ है कि हाँ भाई ठीक है 15 मिनट का ब्रेक देंगे, सो ले लूंगा। और बाद में हो सकता है ये ब्रेक हम ना भी दें। फिर ले चलो लो। खैर कोई बात, हाँ ठीक है। एक दो कंपाउंड और है प्लीज, अगर आप इजाजत दो तो मैं लिख देता हूँ, है ना, खत्म ही कर सर देते कर ही हैं। देते हैं ना। हाँ सर, लास्ट के चलो फिर बच्चा हटाओ, कौन सा कर, नेक्स्ट चलो डे चलो बता कर दें। दिया बस मुझे 5 मिनट और लगेंगे। ओके बच्चे, हाँ इसका बताओ जरा मुझे क्या नेम हो जाएगा। अब तो सबको समझ में आ गई सीरीज। डाई मिथाइल हाँ। कॉमन बताया जाए, कॉमन बताया जाए पहले, कॉमन सबसे पहले क्या करना है, ये जो रेडिकल है ना, नो 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 नो, फिर से गलत, ये अभी समझ में आया था, पहले क्या करना है, पहले रेडिकल का नेम लेना है बच्चे, रेडिकल का नेम, और रेडिकल कहाँ पे अटैच है, ये अटैच है, ये इसका नेम लेना है पहले प्लीज, राइट साइड में। सर मिथाइल एसिटेट। मिथाइल, शाबाश, मिथाइल, देखो बच्चे ने बता भी दिया, आप लोग सोच ही रहे हो यार, मिथाइल एसिटेट हो गया है, क्यों भाई, कॉमन नेम। व्हाट अबाउट आईयूपैक बाय द वे, हाँ बोलो, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। मिथाइल शुरू कर दिया, मिथाइल, आफ्टर दैट हाउ मेनी कार्बन, इथेनोएट। 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 इथेन ओएट, इथेनोएट। इथेन ओएट, इथेनोएट। यस मिथाइल इथेनोएट। इथेन, यस प्लीज, O8। फिर से बोल रहा हूँ, ई मैंने रिमूव कर दिया है, अगर आप ई लगाओगे वो गलत हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो आप मेरी बात? Yes. बस फिर आगे बढ़े, फिर सीरीज खत्म करते हैं। 9 नंबर, चलो जल्दी से। तो यहां से समझ में आ गया फॉर्मेट, कितने फॉर्मेट बना सकते हो आप, 10 क्या 12 तक मैंने बोला हुआ है, मेटेज प्रोब्यूट पेंटेक्स ऑफ नॉन डेक अनडेक दो डेक, वहां तक जा सकते हो आप फॉर्मेट में, मतलब फॉर्मेट के आप 12 नेम बता सकते हो, राइट। फिर एसिटेट के 12, फिर प्रोपाइनेट के 12, फिर ब्यूटानोएट के 12, समझ रहे हो ना। बस फिर आगे बढ़ो। नाउ नंबर 8 के बाद नंबर 9, ओके, सो लेट्स फिनिश द जॉब प्लीज। नंबर 9, बस ये और बचे, इसको फाइनल कर लो। नंबर 9 में आ जाएगा बच्चे, दैट इज साइनाइड। हाँ एक दो और है यार, ठीक है, साइनाइड है, ये 11 नंबर या 12 नंबर है, ठीक है। ओके सर। चलो एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस मैं वन एग्जांपल दूंगा, बाकी आप समझदार हो, समझ ही गए सब कुछ, है ना। साइनाइड बोलो फिर क्या ग्रुप होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, यही होता है ना, यस सर। है ना यस सर। साइनाइड यस का। सर। और बेटा इसका जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो आएगा नाइट्राइल, क्या आएगा, नाइट्राइल। नाइट्राइल। एग्जांपल लिया जाए प्लीज। सो फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट इट, यस प्लीज। सर नाइट्राइल नाइट्राइट का रखा था। नाइट्राइट तो क्या होता है, नाइट्राइट तो NO2 हाँ होता है, सर। नहीं आता समझ सर ये बेटा, ये नाइट कितने नेम हो गए, अब ये बंद हो गया, योर बैटरी इज रनिंग लो, बस ऑफ होने वाला है, गड़बड़ हो गया, लाइट नहीं है। सर उससे भी ब्रेक चाहिए। हाँ बोल तो सही रहेगा यार अब, ठीक है चलो खैर जल्दी बताओ। अब ये लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, पता नहीं रिकॉर्ड हो पाएगा कि नहीं विदाउट लाइट, गायब ना हो जाए यार ये। ओके, सो कॉमन नेम एंड आयुर्वेद नेम, जल्दी बताओ प्लीज। चलो फाइनल किया, कॉमन नेम वही है ना भाई, मिथाइल है, ये नाइट्राइल है ना, या आप साइनाइड भी बोल सकते हो, ठीक है, साइनाइड बोल लो आप, कोई इशू नहीं है।
मिथाइल साइनाइड है ना, मिथाइल साइनाइड, साइनाइड। ओके साइनाइड, चलो लाइट आ गई, वेरी गुड। तो मैं इसको तुरंत चार्ज पे लगाता हूँ, वेट अ बिट प्लीज। हियर आई एम। चलो फाइनल कर लेते हैं। सो मिथाइल साइनाइड, और एक अनदर नेम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यस माय डियर, एसीटोनाइट्राइल, रिमेंबर, बोला था मैंने ऑलरेडी, एसीटो है ना, नाइट्राइल। अरे भाई एसिड तो याद ही है Yes, sir, सबको, एसिड कब यूज Yes, करते हैं sir, yes, एसिड? sir. 2 कार्बन के लिए ना। दो तो बेटा कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 and 2, ठीक है। अब कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का, वी हैव टू ऐड इट, दैट्स इट, ऑलराइट। व्हाट अबाउट आईयूपीएक बाय द वे? क्या होगा आईयूपीएक में? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 1 and 2, Eight. सो क्या लगाओगे? हाँ, 8 साइनाइड इथेन, है ना? तो इथेनाइल common name साइनाइड में सर इसमें मिथाइल यूज नहीं करेंगे पहले आईयूपैक में? बेटा मिथाइल कहाँ से यूज ये करोगे? तो आईयूपीएक पहले में वी हैव टू अरे काउंट नहीं। ऑल नंबर ऑफ कार्बन एटम, सारे चाहिए ना। कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? So 3, अरे 2 है ना यार, sorry 2 है, so 2 है। 3। अब Sorry, 3 कहाँ से आ so गए? गलती से मानता बोल दिया हूँ, मैंने सब। मानता हूँ यार, मैं छुट्टी का टाइम हो गया, मैंने रोका हुआ है, बट इसका मतलब थोड़ी ना आप नहीं गलत so बोलोगे। हाँ मैं गलती से बोल दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जल्दी बताओ, इथेन, क्या मैं ई हटाऊं इस बार? इथेन नहीं, साइनाइड, लगाना पड़ेगा। इथेन सर जब नाइट्राइल, नाइट्राइल, जब नाइट्राइल। नाइट्राइल। कॉमन नेम में जब हम लोग साइनाइड लिखते हैं तो हम उसमें ए नहीं लिखते। कहाँ कॉमन नेम में तो मिथाइल लिया ना, मिथाइल जो लिया है वो, बात इसमें जो ए का उसमें क्या मिथेन मतलब नहीं है? लिया। बेटा मिथेन नहीं लिया ना, इसमें उसमें मिथाइल मिथेन लिखा है। साइनाइड नहीं हो, वो मिथाइल है। कॉमन हम नेम टॉकिंग है। सर अबाउट वो रेडिकल साइन हियर, ने मिथाइल। आपने ऊपर CYAN लिखा है, इसमें CYN लिखा है, तो ए कहाँ गया? तो वो साइनाइड, अच्छा यार वो हो मिसप्रिंट हो रहा ओ, है शायद वंस अगेन, ये होता है ऐसे, साइनाइड। यस ये सर ना, हाँ ये ये बोल रहे हो? यस हाँ ओके बच्चे, वो मिसप्रिंट था बच्चे, मिसप्रिंट था, मिसप्रिंट। इसका मतलब आप बड़े गौर से देख रहे हो, वेरी गुड। चलो इथेन नाइट्राइल फाइनल करें। यस सर। दूसरे एग्जांपल का नाम अपने आप बता दो फिर। चलो ये हो गया ET, और यहाँ पे बन गया बच्चे CN, नेम बताया जाए प्लीज। यहाँ कॉमन हो गया और ये आईयूपीएक हो गया। व्हाट अबाउट द कॉमन नेम? चलो लास्ट एग्जांपल है, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो कॉमन। सर इथाइल, इथाइल, नाउ वी हैव टू यूज साइनाइड, इथाइल साइनाइड। फॉर्मो इथाइल साइनाइड, फॉर्मोनाइट ओके बच्चे। नहीं इस बार क्या आएगा? हाउ मेनी कार्बन प्रोपेन एटम्स नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपियोनाइट्राइल So propane nitrile, प्रोपेन nitrile. नाइट्राइल, गुड इनफ। चलो भाई फाइनल करते हैं, हो गया, आगे बढ़ो। 10 नंबर, ठीक है, बस 2 और बचे, 12 10 नंबर। Yes, sir. चलो फाइनल हो गया बच्चे बस, ठीक है, क्योंकि लेक्चर मैंने पूरा बनाया हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि यहीं तक पूरा हो जाए। 10 नंबर हो गया, दैट इज एमीन। चलो इसका भी एग्जांपल लिया जाए एक, एमीन फाइनल करते हैं। एमीन, सो व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप बाय द वे? यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू previous NH2. knowledge, that is NH2, right? And we have to use secondary prefix as usual, that is amine, Yeah. right? Yes, sir. हाँ, amine Yes, और sir. amine, Yes, sir. whatever जो Yes, आपका मन sir. करे आप यूज Yes, करो sir. बच्चे। So here is example, that is if we have to put here H, then the name becomes ammonia, Yes, sir. है ना? Ammonia. अगर H लगा दोगे Ammonia. बेटा Yes, sir. तो ये तो Ammonia हो अमोनिया बन जाएगा, जाएगा ना sir. बेटा। Yes, sir. तो डायरेक्ट नाम अमोनिया बन गया, अमोनिया गैस, और क्या डायरेक्ट नेम है वो, दैट इज IUPAC, मतलब डायरेक्ट नेम So हो गया। methane लगा देंगे चलो तो फिर यहाँ पे लगा दिया, कुछ भी नहीं हो रही है। चलो बताओ, methylamine. मिथाइल एमीन, कॉमन नेम हो गया मिथाइल एमीन। व्हाट अबाउट आईयूपैक? Methanamine. Methamine. Methamine. मिथेनमाइन, ओके। सो दिस वन इज मिथाइल Methylamine. एमीन, राइट? व्हाट अबाउट द आईयूपैक? Methanamine. IUPAC नेम मीथेन मिथेन। इस बार क्या Methanamine. करना है? ई रिमूव करना है, Yes, sir. राइट? E बिकॉज वी remove आर हो टॉकिंग गया अबाउट, amine. अमीन यस, मीथेन सो नाम हो जाएगा मिथेनामाइन। व्हाट? मिथेनामाइन, राइट? Methanamine. ऐसे इथेनामाइन, ओके, प्रोपेनामाइन, ब्यूटेनामाइन, पेंटेनामाइन, फाइनल लास्ट
रियल सेंस में लास्ट। डोडेकामाइन। हाँ बिल्कुल, अरे डो टेकर तक जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार रिवाइज करो, नेक्स्ट जब मैं मिलूंगा ना तो फिर आप मतलब ये मुझे इसमें जितने डाउट्स आपको होंगे तो प्लीज लेट मी नो। ओके बच्चे, नोट कर लेना। तो मैं एक अभी सो आप डीपीपी बना, क्वेश्चन शेयर कर दोगे तो डाउट आएंगे। ठीक है मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा, बताओ कितने क्वेश्चन दूं? 15 काफी है? 15 वाला डीपीपी शेयर कर दूंगा। सर 20 राउंड ऑफ 20 सर। वाह 20 क्या complete बात है, करेंगे। वेरी गुड। ठीक है मैं 20 दे देता हूँ विद आंसर की, है ना, सो दैट शुरू में आपको थोड़ा हिंट भी नहीं, मिले। सो आंसर की सर आंसर नहीं, नहीं सर तो नहीं, आंसर की आप नेक्स्ट क्लास में शेयर कर देना। हाँ ठीक है गुड। बाद में फिर देख चेक कर लेंगे। सो तो वो Okay. सबमिट कब तक करना है? नेक्स्ट क्लास तक हाँ या बस फिर आप मुझे, डिस्कस हो जाएगा तब तक? नहीं आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मतलब बता सकते हो, या फिर आप सर वो कभी तो भी। सेल्फ कि प्रैक्टिस सर के लिए है ना डिस्कस वो कर तो। लेंगे फ्राइडे की क्लास हाँ में। हाँ ऑब्वियसली, वो सर प्रैक्टिस अभी सेट आप दूंगा ना, कब भेजोगे डीपीपी? कल डाल देता हूँ मैं, कल इवनिंग तक। रेडी ओके ओके सर। सर। बेटा इसका दूसरा डिग्री के बेस पे नेम बताना जरा, ये प्राइमरी अमीन है या नहीं है, प्राइमरी अमीन है या नहीं, यस और नो में बताना है बस। ठीक है डिग्री के रेस्पेक्ट में ये कौन सा अमीन है, क्या ये सेकेंडरी है, यस और नो बोलो बेटा। यस अरे सर। Yes, अमीन sir. I'm talking about यस सर। on basis of number of protons, remember or not? यस सर। 2 हाइड्रोजन है ना, तो प्राइमरी बोलोगे ना। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम तो सेकेंडरी अमीन भी है इसका। व्हाट अबाउट द आईयूपीएक नेम बाय द वे, थोड़ा सोच के बताओ जल्दी से। हाँ कॉमन नेम बताया जाए, फिर आईयूपीएक नेम बताया जाए। कॉमन नेम में इसका सेकेंडरी अमीन भी कॉमन नेम है, बियॉन्ड एनी डाउट, बियॉन्ड एनी क्वेश्चन। सो व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन नेम। सर अरे यार सर डाइमिथाइलअमीन। 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 सिंपल था एकदम, डाइमिथाइलअमीन। व्हाट अबाउट द आईयूपीएक नेम? इस बार जब डबल 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 हो जाएगा ना तो हमें यूज करना है एन, एन मिथाइल। क्या यूज करना है बच्चे? एन मिथाइल। एन मिथाइल। एन से अटैच है ना वो, एन मिथाइल एंड मिथेनामाइन। अमीन। यस सर। मिथेनामाइन, मेथामाइन। मिथेनामाइन। मिथेनामाइन। हाँ क्योंकि फिर तो एक ही कार्बन बचा ना लास्ट में, एन मिथाइल मिथेनामाइन। रेडी यस। ओके चलो थर्ड एग्जांपल, व्हाट अबाउट केस ऑफ टर्शियरी अमीन बाय द वे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने पूरा ही ले लिया है ना, मैं नहीं चाहता कुछ एस्केप हो, क्योंकि बेसिक सिर्फ हम एक बार डिस्कस करेंगे बच्चे, एक बार। कोई प्रोटोन नहीं है इसके पास, बोलो फिर व्हाट अबाउट द नो सर नेम प्लीज। टर्सरी है बिकॉज यस इंडीड। नाउ व्हाट अबाउट द कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ इट इज, यस प्लीज, टर्शियरी अमीन ट्राइमिथाइल। यस सर। और ट्राइमिथाइल, शाबाश, ट्राइमिथाइल। ट्राइमिथाइल अमीन, वेरी गुड। अमीन। What about the IUPAC name now? Now we have to put, yes please, N comma N, N comma N dimethyl डाइमिथाइल। मेथामाइन। methenamine। मिथेनामाइन। हाँ ठीक है, देखो कितना बड़ा नेम है ना। ठीक है समझ आ गया ये सर ज्यादा इसमें स्पीड तो थी? फॉर श्योर कंफ्यूज हो जाता अगर आप क्वेश्चन देते तो। हाँ ये तो है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बस मैं एक बार सारे कर देता हूँ डाउट दूर। ओके लास्ट क्लास 11, इसमें एक एग्जांपल काफी रहेगा मेरे पास, बहुत बड़ा तो नहीं है। हालांकि थायोल है वो, थायोल, तो यू नो थायोल, थाया, वी हैव टू यूज थाया फॉर सल्फर एटम, सल्फर सर। यस सर। है ना डियर। तो थायोल है SH, व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप थायोल, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी प्रीफिक्स एज वेल एज थायोल। ठीक है चलो लास्ट एग्जांपल है रियल सेंस में, एग्जांपल मैंने उसमें बढ़ा दिया इसलिए आई मीन थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, 6 बज गया, चलो कोई इशू नहीं है। मैं मनोज सर को मैसेज कर देता हूँ, है ना, तो बच्चे को 15 मिनट का ब्रेक दे दूँ। ओके ठीक है प्लीज, व्हाट अबाउट द नेम, यहाँ पे आ जाओ आप, दिस वन इज MESH, क्या क्या देगा नेम, कॉमन नेम पे आ जाओ। सर अगर आप टाइम ले रहे हो तो फिर पूरा ही करवा दो फिर। पूरा हो गया ना, बस हो तो गया पूरा, और क्या। सर ये सर मिथाइल थायोल हो गए। या सर मिथाइल, मिथाइल थायो या फिर थाइमिथाइल? मिथाइल थायोल है ना, थायोल लास्ट में है।
और क्या थायोल ही आएगा। ठीक, व्हाट अबाउट ये आईयूपीएक नेम? सफिक्स है ना, और क्या? सफिक्स है इसलिए था। तो ये आएगा मीथेन। इस बार मुझे क्या करना है, ई लगाना है यहाँ पे, मीथेन थायोल। क्यों भाई, बन गया नेम? यस और नो? यस सर। बस फिर फाइनल करते हैं इसको। सर आज क्लास ही नहीं हो रही है। सर आज क्लास नहीं है, कौन सी क्लास नहीं है? मैथ्स वाली अभी मैसेज। रियली? अभी मैसेज आ गया आपके पास? थर्सडे को है। अच्छा, ओके चलो आपने बोल दिया तो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। फिर मैंने सर सोचा आप भी कोई- चेक कर लेना ग्रुप पे। नेक्स्ट टॉपिक भी करवा दो, हाँ थोड़ा एक्सटेंड कर लो क्लास अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है। तो सर अगर ऐसा है तो फिर आप एग्जांपल दे देना थोड़े से, अगर Yes, मतलब sir. नए Sir, टॉपिक थोड़े में पढ़ा extra रहे हो तो। examples दे दो। इन्हीं में सर एग्जांपल और ओके ठीक है। मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट 6:30 पे जाना है कहीं, ठीक है। मुझे अगर ये बात पहले पता Sir, होती तो मैं यहीं पे so रहता। अगर आप थोड़ा हाँ सा तो सर कर अभी सको तो कर 6:30 सकते तक हो। आप एग्जाम्पल दे दो जितने, ले फिर लो उसके बाद आप ले लो So, नो इशू जितना एट आप ऑल। कर सकते हो उतना आप ओके time दो। ओके 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 ठीक है। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट बाय द वे? नेम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन, चलो कॉमन ही बता दो पहले। व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? सर ये It is- बेंजीन थायोल है। ओके, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? कॉमन नेम आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज OH। क्या नेम होगा? सर बेन अरे बेटा फिनॉल कॉमन नेम था उसका, फिनॉल था या नहीं? सर ये फिनोल और- अमोनिया इन नाम को अलग से याद करना और पड़ेगा। और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था व्हेन मैं इंट्रोडक्शन बोल रहा था आपको, राइट? इंट्रोडक्शन दिया था ना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहला लेक्चर। उसमें मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोल्बे श्मिट रिएक्शन, रिमेंबर? कोल्बे श्मिट यस रिएक्शन, सर, रिमेंबर और यस नॉट? सर, यस सर। हाँ, तो उसमें मैंने सबसे पहला एग्जांपल ही लिया था फिनॉल। फिर भी आप भूल गए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अगर सर ये एक और फिनॉल, होता है ना, हाँ। बहुत सारे रिसेंबलिंग होते हैं, SO3 भी है एक बेंजीन का, SO3 बेंजो सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यस प्लीज, व्हाई नॉट? ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड Yes, है sir. उसका नाम। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? थायोफिनॉल, राइट बच्चे? क्या हो जाएगा? थायोफिनॉल। थायोफिनोल। ऑलराइट, थायोफिनॉल हो गया इसका नाम, कॉमन नेम, ठीक है। हम इसको फिनाइल भी यूज करते हैं, दैट इज फिनाइल, है ना? फिनाइल भी यूज करते हैं इसके बारे में। एनीवे, सो ठीक है, ये जल्दी से मुझे बता दो प्लीज, सबसे ज्यादा आई मीन डिफिकल्टी किस क्लास में आई है इसमें से? मैंने यहाँ पे पूरी 11 क्लासेस को डिस्कस किया है, ठीक है, 11 क्लासेस, राइट? सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किस में आई है? कोई ठीक है सारी क्लासेस, या किसी में कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। सर ये 11th के एक दो और एग्जाम्पल। ठीक है, ले लो आप 11 के एक दो और एग्जांपल ले लो आप, व्हाई नॉट? थर्ड एग्जांपल ले लिया हमने, राइट? थर्ड एग्जांपल चलो आप साइक्लिक सिस्टम में ले लो आप। साइक्लिक सिस्टम, हियर इज SH, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ इट? कॉमन नेम बताया जाए पहले, कॉमन या आईयूपैक, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहते हो। सर ये पेंटाथायो, पेंटाथायो, पेंटीन थायो। नो नो, साइक्लो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा वी हैव टू, यस प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट दैट इज प्रेफिक्स नोन एज साइक्लो, ठीक है। हाँ, साइक्लो तो क्या नाम होगा? पेंटीन थायो। साइक्लो, सबसे पहले तो ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, साइक्लो पेंटेन थायो। थायोल, थायोल। थायोल, यस और नो? Thiol, sir. यस, साइक्लोपेंटेन थायोल, दैट इज द नेम। Thiol. तो थायोल में कुछ IUPAC में और कॉमन नेम में देयर इज नो ह्यूज और एप्रिशिएबल डिफरेंस, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक। सबसे जो टिपिकल सी क्लास है इसकी एनहाइड्राइड की है या फिर एस्टर की है, ठीक है। ये दो क्लास हैं जो थोड़ी टिपिकल है, राइट? हालांकि अब नहीं बची, हमने डिस्कस कर लिया, ऑलराइट, ठीक है। Yes. यस और नो? लॉक किया जाए? सो यहाँ तक जितनी भी क्लासेस थी मैंने एग्जांपल आई मीन सबके ऑलमोस्ट ले लिए, ठीक है। तो सर ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें आईयूपैक नेम और कॉमन नेम बहुत बैडली डिफरेंस आएगा, या मतलब सेम ही रहेगा, या कुछ ना कुछ डिफरेंस क्या आएगा? क्या कॉमन नेम हो सकता है बताओ?
क्या नेम हो सकता है? साइक्लो साइक्लोपेंटेन थायोनी है, थायोली आएगा, राइट? साइक्लो क्योंकि तो हो गया साइक्लो तो मस्ट है, चाहे वो कॉमन Yes, हो sir, चाहे वो वो तो- आईयूपैक यस हो। साइक्लो तो स्ट्रक्चर वो तो में common है ना? वो तो यस, आएगा। बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट, यस प्लीज, कार्बोनिल जैसे है ना? ऊपर थायोल है तो फिर हाँ, दोनों में साइक्लिक है और वैसी टाइप में। साइक्लिक को और ए साइक्लिक को डिफरेंशिएट करने के लिए तो हमने यूज किया क्या? प्राइमरी, यस प्लीज, सफिक्सेस। अभी तो मैंने नोमेनक्लेचर sir. भी समझाया था, है ना? तो साइक्लिक है या ए साइक्लिक है, हमने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए तो किया है ना। रेडी? ओके, यस सर। सो बताओ Yes, जल्दी से, sir. मैं यहाँ तक नोमेनक्लेचर लॉक किया जाए या कोई प्रॉब्लम है आपकी इसमें? नो सर। प्रॉब्लम कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? तो मैं एक No, काम sir. करता हूँ फिर, अब No, sir. आपको अभी मैं विद इन 2 और 3 आफ्टर 10 PM मैं आपको एक डीपीपी अभी सेंड करता हूँ, और बताओ, हम वेट नहीं ठीक करते है, यार सर। तब तक। अभी तो यार आप ये चीज बोल रहे हो तो पता चला कल को बोला कि नहीं सर प्रॉब्लम हो रही है ना? अभी तो एकदम रेडी हो या नहीं नहीं सर, कर दो, प्रॉब्लम होगी तो पूछ सर लेंगे ना वो प्रॉब्लम आप। तो क्वेश्चंस में होगी ना, वो तो पूछ हाँ। लेंगे। पूछ लेंगे ना। हाँ। यस सर, ठीक है, मैं अभी 20 क्वेश्चंस का आपको एक डीपीपी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? सर तो इसमें आप कॉमन नेम IUPAC नेम पूछोगे या जो अब तक पढ़ा है वो सभी पूछोगे? नहीं, जो भी मैं आपको दूंगा आपको दोनों नेम बताने, कॉमन एज वेल एज आयुपैक, ठीक? ओके बट सर। उससे पहले आपको एक होमवर्क जरूरी है, वो भी आप अभी 6 बजे है, तो आप ऐसा कर लो कि आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद में रिवाइज करो प्लीज वो 5 रूल्स जो एनसीईआरटी में है। कौन से रूल रिवाइज करने हैं? 5 रूल्स। सर जो एक तो आपने उसमें, बताया था कि हाँ, एनसीईआरटी में यस, इनिशिएटर एक तो उसमें काउंटिंग है चेन वाली, राइट? हाउ यस टू सर, एक चेन वाली काउंट अ प्रिंसिपल काउंटिंग। चेन, है ना? ठीक है। यस सर। उसके बाद लोवेस्ट लोकेंट रूल है उसमें, लोवेस्ट लोकेंट रूल, राइट? हमें कैसे काउंट करना है, तो एक बार आप ऐसा करो, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद में एनसीईआरटी थ्रूली रिवाइज कर लो और वो 5 रूल्स एक नोटबुक में नोट कर लो, फिर मैं आपको उसी बेस पे कुछ डीपीपी शेयर करूंगा, ठीक है? सो इट वुड बी फार बेटर एंड कन्वीनियंट। सर 10 बजे। हाँ, 10 बजे का राउंड, मतलब एज सुन एज पॉसिबल, आफ्टर 9 PM में शेयर कर दूंगा, वो 10 भी बज सकते हैं, वो डिपेंड करेगा मैं सर, कितने एक और डाउट था। हाँ, पूछो 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 पूछो। व्हाट? सर जो आप शेयर करोगे वो ग्रुप पे शेयर करोगे या फिर ऐप पे? देखता हूँ, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, कोई इशू नहीं है ना? यस सर, ग्रुप पे डाल दो, मैं यही कह रहा था, वो ऐप ग्रुप पे में डाल थोड़ा दूंगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा आपके पास, दैट्स इट, या फिर मैं देख लूंगा ऐप पे शेयर कर देंगे, व्हाटएवर, मतलब शेयरिंग हो जाएगी। नहीं नहीं सर, ग्रुप पे ही शेयर कर दो, उसके लिए अलग से एंड्रॉइड डिवाइस लॉगिन करना पड़ता है। ओके, एज यू विश, ठीक है, डन। यस सर सर। ये जो थायोल वाला जो ग्रुप था, इसमें हम स्पेशल कार्बन यूनिट क्यों नहीं यूज की थी हमने इस लास्ट वाले एग्जांपल में? स्पेशल कार्बन यूनिट बिकॉज इट इज Like, साइक्लिक, इट इज साइक्लिक, सो वी साइक्लिक हैव में टू, हम नहीं यूज करते हैं। इसमें सारी यूनिट तो डिस्कस की है बच्चे, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल यूनिट यू आर टॉकिंग अबाउट बाय द वे? वी हैव यूज साइक्लो, राइट? साइक्लो यूज की है हमने बिकॉज इट इज साइक्लिक, यस। और बट अबाउट द, कार्बन वाली जो आपने बताए थे टोटल 5 जो थी, तो बेटा है तो Bennett, पेंट, ये रहा ऐसे। पेंट। अच्छा, वो हाँ वो सर। यस वो सर। जितने स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, स्ट्रेट चेन, राइट, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक? इट इज नॉट स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स बाय द वे, इट इज साइक्लिक, ठीक? तो उसमें ट्राई इसमें कर डबल सकते हैं, इसका ट्रिपल कॉमन चेन है। बन रही है। हाँ, तो ये साइक्लिक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है बेसिकली, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है। सो नेम हो गया, इतने सारे नेम थे, तो इसमें एनहाइड्राइड एस्टर ये क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन, अमाइड वगैरह भी, ओके? सो ठीक है, सी यू वेरी सून, थैंक यू सो मच फॉर योर Yes, काइंड sir. अटेंशन, ओके माय Thank डियर, थैंक यू सर। देन गुड नाइट टू ऑल बाय ऑफ यू, सर। ओके माय डियर, गुड नाइट, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। ओके।